So today I have added few more sections in the painting section because there are so many painters. I am concentrating mainly on the international one. There are around 10 people on the Indian scenario. You can take care of them. Or the three names I have added, which are very, very important. Chagall is more of contemporary in the sense because he died in 1985. So you can consider him as a contemporary. But Picasso is a star painter in the history of painting, and Raphael is a star in the time of Michelangelo and others. He is the contemporary of Michelangelo, and he is as big as Michelangelo, but probably some people will consider him next to Michelangelo, but still, Raphael has his own style of things because he concentrated mainly on the painting and not on the sculpture, while Michelangelo was master in both. So we'll start with the Chagall. Marc Chagall is the name, and this is one of his painting which I have used on the thumbnail over here. So we'll start with the name of the painting, and then I've just selected some, I would say 15 painting, though there are many more also which are equally important, but I have given a concentrate attention to the painting which are being used on the stamps also. So because we cannot have so many names right now, it will be difficult for you to remember also. So I'm just trying to filter the best cream thing, because there would be only one question if there would be a question in the MCQ part. And maybe students who are appearing in the cinematography, there could be MSQ also on the painting. So probably there is a probability that it is also can be asked for cinematography student, and others are not sure about it. But definitely MCQ, I am hoping one international painter name should be there, or maybe a sculptor. So Wedding Party on the Eiffel Tower is one of the famous painting, and that's how it looked like. So you could see the thing over here. This is also being used on the stamp. One of the stamp is being used for this painting. Then there's a soldier drinking. Then this is the painting. You could see the style remains same, and again you can feel some idea of cubism, like triangular shape at the eye, some elliptical shape. So not true cubism, but still some kind of little tinges, you can feel it. Then Bride La Marie is another name. So this is another painting which is quite a famous one. You could see it's being framed by various people who sell the reproduction. So if some painting is being sold as a reproduction, it means it is an important painting. That's another hint about how a painting is important. That's how I evaluate the importance. Then the Rain. This is a painting. Could see how the cloud formation, he has used the idea of cloud formation. Then Promenade. So this is one of the most famous painting, I would say, after another one which I'll tell you. It is also being used on the stamp of a particular country, where somebody is, you can feel is kind of a flying, and another person is holding the hand from the ground. So this is another painting which is very, very popular in terms of when you talk about the Marc Chagall, this is the first image comes to your mind. Then you have a piece window. Again, little complicated, but very stained glass kind of painting. You could get a feel of stained glass. This is the only painting which is of a different style, probably. Paris Through the Window. This is another painting. You could feel the Eiffel Tower in the backside and these buildings here and there. Over the Town. Similar kind of painting where that flying thing is there, and this is also a painting which is being used in the reproduction of selling of a painting. So you can get a feel that of the framing thing being done. So I have lifted this image from there.
So over the town, over with back. This is also a kind of painting which is used in the stamp by a particular country. Then you have lover with half moon. Another very stylish with a very prominent blue color in terms of the painting style. Moving further, I and the Village, another famous painting by Marc Chagall. You could see this cow thing over there and this human figure, and these are made in a perspective style. And then you see this guy going, working class kind of person. And then you see the another cow over here. So this is a very multiple perspective style kind of painting. Very distinct Marc Chagall style. Green violinist. Only the face and the hands are green, not all the hand, but one hand only. So very stylish in terms of the structure, design, very graphic, I would say. Then you have a blue lover. Same painting, which is being used by as a thumbnail because it's quite famous. So I have used this painting also, blue lover. Then blue landscape. Again, prominent blue is being used over here. Then Bella with white collar. Again, a very different vertical frame. Unlike many of these paintings, a little different in terms of style, in terms of composition, I would say. Style remains same, composition changes. So these are the 50 paintings which I wanted to talk about. Then we will move to Picasso. Picasso is another star painter. I have just picked up the 10 paintings by him. So Weeping Woman, again Pablo Picasso. So we already had discussed this particular painting in the class. Then Three Musicians. So very typical Pablo Picasso style painting. The Old Guitarist. Again, a very popular and famous painting. The Young Ladies of Avignon. This is very often you get to see this painting by Picasso. The Portrait of Dora Maar. Kind of muse to him. Majoli is another famous painting. I have used this painting as a thumbnail also. So this is one of the most popular one. There are a few also, but I have just selected some limited one. La Revue. Again, very often you get to see this particular painting. This is different. This is La Vie. Again, a very specific tinge in terms of the color tinge of the poster. Guernica. Again, the most very often you get to see this Hughes painting, which is in Spain right now into some museum. I've forgotten the name. That museum is popular because of this particular painting also, because Picasso's this work is not everywhere. So Girl Before a Mirror. Again, as we said that we have used this painting also in the discussion. Family of Saltimbanques, some French name. I'm not able to pronounce it properly. So this is another painting by Picasso. So these are some 11 paintings I was able to collect from somewhere. Though there are more than 30 important paintings, I would say, but I have just selected these. So at least some idea you have. Those who are preparing by themselves, they would have just recollected.
Raphael, we have 12 paintings here basically. And the most famous one I have used over there on the cover. So Vision of a Night. So this is one very, very stylish and detailed painting where the blue is more prominent color. The Transfiguration. Again, a very complex in terms of number of candidates and people. The School of Athens. This is a huge painting discussed very often, and you could see it is so many characters over there. This is not a true color reproduction, but Marriage of the Virgin. Very famous painting of the Raphael. I recently ordered one book in which you could see the color reproduction much better than what you are seeing here, but still here it is also nice in terms of overall. Entombment is used by most of the painters, the similar posture and thing like that. Raphael also has done the similar painting. So it was a very popular theme. Saint Michael Vanishing Satin. So that's another vertical frame. Saint Michael again. Saint George and the Dragon. There are two images of that, 1 and 2. So this is one going toward the right side, and there's another one which is going toward the left side. So these are two paintings of the same guy, more or less, in terms of action, but direction are different. Sistine Madonna. Again, this is the one which I have used on the thumbnail also. La Vellata. These are some Italian names. It's one of the famous painting. The moment you open the book on the left side, first painting is this one. It's very, very detailed in terms of the folds, the gold and yellow and silver. Oh, sorry, not yellow, but white and silver. Very detailed work. Canigini, Holy Family. So these are some of the painting by Raphael. So three people I have considered today: Chagall, Marc Chagall, Picasso, and Raphael. So this is what I wanted to discuss. Then we will start with the place where we left yesterday, so that because MCQ has become more important, so it's very important to revise certain things. And I will also make some note in case something strike in my mind while listening to these lectures, which was 2-year-old, but again, they are still valid and they will remain valid after 5 years also, because this is not a current affair, but this is a specific knowledge connected with the MCQ section. So here we start. Hanji. Carlo Ponti is a producer, director of the Venice Film Festival, none of them. तो कुछ ना कुछ तुक्का लाया तो आदमी लगा दे, बट उसको लगेगा पता नहीं क्या है ये सब. तो ऐसा कोई भी आदमी जो सेलिब्रिटी रहा हो किसी ना किसी कारण से, पूछा जा सकता है. आ जाइए आपके बस आ गई, बहुत अच्छी बात, बैठ जाओ. 20 मिनट लेट है, वीडियो देखेगा तब समझ आएगा तुझे. हाँ जी. Which among the following is a winner in the category of best foreign language in 1951? अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया है? ऐसा क्वेश्चन जनरली बनता नहीं है दूसरे तरीके से. कौन से साल, कौन से ईयर के अंदर ये फिल्म, मान लो 1951 की कोई फिल्म है जो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज, तो कौन से साल में ये विनर थी, ऐसे नहीं पूछा जाएगा. 51, 52, 53 बड़ा झंझट का काम है, याद रखना बड़ा चक्कर पड़ जाता है. मगर जनरली ये याद रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस साल लगान थी हिंदुस्तान से, उस साल नो मैन्स लैंड भी थी, उस साल ये भी थी, उस साल वो भी थी. याद करना थोड़ा सा आसान है.
तो मैंने क्या करा है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर दिया है तुम लोगों को कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ इन द कैटेगरी ऑफ द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, माय अंकल, नाइट ऑफ कैरेबिया, लास्ट। अभी मैंने क्या करा है, 1951 की बात की है। हो सकता है बाकी की फिल्म में 1951 में कभी नॉमिनेट ही ना हुई, ये भी हो सकता है। हाँ जी, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द, मुझे ये बताओ कि इन फिल्मों में से 1951 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर विनर कौन सी फिल्म? तो सारी की सारी जो है ऑस्कर विनर है क्या? देखो, माय अंकल ऑस्कर विनर है, कल मैंने बताया था, याद आया? हुलू हॉलीडे, 5 जिसने फिल्में बनाई है, कॉमेडी बनाता है वो हमेशा, और डायलॉग फायलॉग होता नहीं है। याद आया कुछ थोड़ा थोड़ा? ताती, याक ताती वाला आदमी, माय अंकल उसकी फिल्म है। नाइट ऑफ कैरेबिया फेलिनी की फिल्म है, उसके बाद लास्ट स्टार्डा फेलिनी की फिल्म है, उसके बाद नाइफ इन द वाटर रोमन पोलांस्की की फिल्म। तो आपको मैंने कल परसों बताया है सारा का सारा, जाके चेक करो, हर चीज में से मत पूछो, थोड़ा भी दिमाग का लगाओ थोड़ा सा। हाँ जी, उसके बाद 59 में आ जाइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बार बार मैंने क्या लिखा, विच अमंग द फॉलोइंग इज विनर इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज? क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 1951 के अंदर, एक मिनट मेरे को रिकन्फर्म करने दो, किसी ने मुझे पॉइंट आउट भी किया था उसके अंदर। एक मिनट लगेगा। 1951, एक मिनट 51 नहीं होना चाहिए पहली बात तो, ये होना चाहिए 90। अभी रुक जाओ, अंकल, नाइट ऑफ कैरेबिया, लास्ट स्टार्डा। तो लास्ट स्टार्डा हो गई, नाइट ऑफ कैरेबिया हो गई, मोनो, तीनों विनर है। इसका मतलब नाइफ इन द वाटर नहीं थी, वो नॉमिनेटेड थी। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, ईयर को हटा दो, ईयर को हटा दीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज विनर इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फॉरेन, नहीं फिर भी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए विनर इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज? ईयर को हटा दो इनको। ये क्वेश्चन रीफ्रेम्ड होगा 58, रीफ्रेम्ड होगा, विच अमंग द फॉलोइंग फिल्म इज नॉट ए विनर इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज फिल्म? इसका मतलब क्या है कि माय अंकल भी है, नाइट ऑफ कैरेबिया भी है, लास्ट स्टार्डा भी है, नाइफ इन द वाटर नहीं। तो आंसर इज व्हाट? डी। ठीक है, रीफ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर इज डी। पेपर कहां है, समझ नहीं आता। रीफ्रेमिंग क्वेश्चन नंबर 58। चलो जी, आगे आ जाइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए विनर इन द, ये उसी का रिपीट किया है मैंने थोड़ा सा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए विनर इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज विनर? तो अगर आपको विनर याद है तो आप कट आंसर दे सकते हैं। कम से कम विनर याद कर लो, बाकी लोग छोड़ भी दो तो काम चल जाएगा। मैरिज इटालियन स्टाइल, क्लोजली गार्डेड ट्रेन, शॉप इन द मेन स्ट्रीट, यस्टरडे टुमारो, दो फिल्में हैं ये, दोनों की दोनों फिल्म जो है डिसिका की फिल्में हैं, विक्टोरिया डिसिका, और दोनों में सोफिया लॉरेन है। ठीक है जी, यस्टरडे टुडे टुमारो और मैरिज इटालियन स्टाइल। तो इनमें से एक फिल्म नहीं है, कौन सी नहीं है? मैरिज इटालियन स्टाइल नहीं है, यस्टरडे टुडे टुमारो है। हाँ जी, आगे आ जाइए, एक सेकंड का मुझे टाइम दे दो। हाँ जी, जबकि पॉपुलर है मैरिज इटालियन स्टाइल ज्यादा। इन दोनों फिल्मों में जो पॉपुलर फिल्म है वो यस्टरडे टुडे टुमारो ज्यादा नहीं है। पॉपुलर जो है वो मैरिज इटालियन स्टाइल है, समझे कि नहीं? बट वो पॉपुलर से कोई मतलब नहीं है, विनर है कि नहीं बने ये बताओ। पॉपुलर है बट विनर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया इसका? मैरिज इटालियन स्टाइल, क्योंकि 64 में विनर जो है आपकी यस्टरडे टुडे टुमारो है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए विनर? नॉट ए विनर मतलब मैरिज इटालियन स्टाइल। ठीक है जी, नॉट की बात कर रहा हूं, जो नहीं, जिसमें जीता, वो वाली बात हो रही है। ध्यान रखना, नॉट आ रहा है या विनर पूछ रहा है, क्वेश्चन को जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन आता भी होगा इसलिए भी फंस जाओगे। इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मुझे से कोई पागल आदमी बैठा होगा, वो कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं कर देगा, पहले क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देगा जिससे तुम आंसर में कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्लस्ट्रोफोबिक क्वेस्ट ऑफ जर्मन सबमरीन क्रू इन द बैटल ऑफ अटलांटिक 1942। अब ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जर्मन सिनेमा का। अब जिसने ये सब फिल्में नहीं देखी है वो आंसर नहीं दे पाएगा।
तो इसलिए क्या है कि ये कभी कभी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो मैं सोच रहा था कि डालूं ना डालूं, डालूं ना डालूं। अब ये इसके अलावा और आगे आइए, ये वाला आगे भी जो है, in the first phase science fiction film ever be taken in the futuristic city populated by the upper class while the working slave in the horrible underground condition, फलाना ढिमका मेटामॉर्फोसिस 2001 डेवलप। अब ये सारे के सारे जो मार्क कर रहा हूं मैं, 60, 61, 2 men and women get entangled, this is 62, this is 60, हाँ ये जंगल। अब जैसे 63 क्वेश्चन को देखो, 60, 61, 62 को छोड़ दो क्योंकि इनमें सबों की सिनॉप्सिस पता होगी तब आंसर दे पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सब लोग जाके घर पे इनके सिनॉप्सिस देखना, जिससे आइडिया लग जाए क्या फिल्म है। मैं वैसे ही बोल दूंगा, आपको कोई मतलब। तो मार्क करो क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62, इन सब फिल्मों के थोड़े थोड़े से सिनॉप्सिस जो है पढ़ोगे, जिससे क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। मैं 63 क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक सिनॉप्सिस है एक फिल्म का, एक फिल्म का सिनॉप्सिस है। Synopsis in the sense that after the destruction of Falana Dinka Empire, a Spanish expedition is out to search El Dorado, the Golden Land. As they adventure further in the jungle, the madness of the expedition leader becomes ever more visible. ये कौन सी फिल्म है? ये वही है जो क्लॉस किंस्की ने काम किया था वर्नर हेrzog के साथ। फिल्म का नाम क्या है? फ्रिट्ज कराल्डो। फ्रिट्ज कराल्डो, फ्रिट्ज कराल्डो जो है उसमें शिप का चक्कर होता है। शिप, एक शिप से दूसरे शिप पूरे पहाड़ के ऊपर से जो है वो जाते हैं। 63 का आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एग्यूरी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फ्रिट्ज कराल्डो नहीं है, एग्यूरी है, क्योंकि उसके अंदर भी क्लॉस किंस्की है और जंगल में फिल्म है। तो फ्रिट्ज कराल्डो नहीं है क्योंकि फ्रिट्ज कराल्डो के अंदर जो है वो शिप जो है रिवर है, नील रिवर है उसके अंदर, रिवर से वो शिप को क्रॉस करवाते हैं वहां। तो शिप उसके अंदर कीवर्ड है, ना कि वो। तो एग्यूरी द रेथ ऑफ गॉड के अंदर क्या है? जंगल में पूरी फौज है, पूरी जा रही है, वो सब चक्करबाजी है। आंसर इज एग्यूरी द रेथ ऑफ गॉड। तो ये क्वेश्चन जब तक तुम्हें फिल्म का सिनॉप्सिस नहीं पता होगा किसी का, नहीं दे पाओगे। समझे कि थोड़ा सा बहुत क्लियर तरीके से पता होना चाहिए कि क्या सिनॉप्सिस है, फिल्म किस चीज के बारे में, थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। वर्नर हेrzog की एक और फिल्म है जो थोड़ा सिनॉप्सिस पढ़ के पता लगनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं आ रही कौन है। उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा शहर है जहां के पास में एक, क्या बोलते हैं, ये जो माउंटेन जो होता है उसमें से लावा फूटने वाला है और वो चीज डिक्लेयर हो गई है। तो सब लोगों को बोला गया है कि वो जो है शहर जो है खाली कर दो। सिटी ऑफ विंड मिल्स। सिटी ऑफ विंड मिल्स। एक मिनट, विंड वेल्स, सिटी ऑफ विंड मिल, ये हो सकता है नाम, मेरे को देखना पड़ेगा क्या है। तो उसमें जो है सब लोग खाली करते हैं। तो ये जो है कहीं से परमिशन ले ला के उस सिटी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने चले जाते। तो अगर तुम्हें फिल्म देखी होगी या थोड़ा सा आइडिया होगा कुछ ऐसे ऐसे है उस फिल्म के अंदर कुछ जो है, तो तुम करेक्ट आंसर दे पाओगे। ये भी एक तरीका हो सकता है टफनेस को बढ़ाने का कि किसी पॉपुलर फिल्म की कहानी 2 लाइन में डाल दी उसने, जैसे इसमें डाली हुई मैंने एग्यूरी द रेथ ऑफ गॉड के अंदर, और उसमें फिल्म का नाम आदमी का, डायरेक्टर का पूछ लिया। तो ये चारों की चारों जो है फिल्में जो है फ्रिट्ज कराल्डो, एग्यूरी और वाइजैक, इसकी इंपॉर्टेंट फिल्म है। स्लेव कोस्ट पता नहीं इसका है भी कि नहीं, मैंने वैसे लिखना दिया हुआ हिंदी से, क्योंकि डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है उसमें। ये नहीं बता रहा हूं मैं कि ये फिल्म जो है वर्नर हेrzog ने डायरेक्ट की है, डायरेक्टर का नाम नहीं बताया गया है, ध्यान रखो। उसके अंदर कहीं भी वर्नर हेrzog का नाम नहीं है। वर्नर हेrzog बोल देता था उसकी कोई फिल्म होनी चाहिए, ऐसा मैं कोई ऐसे नहीं कुछ भी ऊटपटांग का कोई भी नाम डाल दूंगा वहां पे। देयर हैज टू बी ए नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन्स फिल्म। हाँ जी, जनरल वर्ल्ड वॉर 2 सीजेस अपॉर्चुनिटी टू कॉल दिस अगेन, कि द्वारा से ये इस 64 में भी जितनी फिल्में सब का सिनॉप्सिस पढ़ो तभी आंसर मिल पाएगा, वरना कोई मतलब नहीं। तो 60, 61, 62, 64 सब फिल्मों के सिनॉप्सिस पढ़ो थोड़ा थोड़ा, ये सब इंपॉर्टेंट फिल्में हैं, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, याद लंबे समय तक आपको रहेगा। हाँ जी, a man has left his wife and child, having lost all the memories of his marriage, he returns after 4 years to face his past। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है 65 के अंदर। अगेन, अगर तुमने विम वेंडर की फिल्में नहीं देखी है तो तुम इसका आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें बनाए हैं कि आपको ये थोड़ा एक आइडिया रहे कि, और पेरिस टेक्सास जो है खास तौर में इसके बाद क्या है, ये पाल्म d'Or विनर है कांस का, उस साल का पाल्म d'Or विनर जो है कांस का पेरिस टेक्सास है। तो और इसमें वो जो लड़की है नताशा किंस्की, क्लॉस किंस्की की जो बात कर रहे थे हम लोग, शी एक्टेड इन दिस फिल्म आल्सो।
तो पेरिस टेक्सास जो है, बट इसमें हाँ वो जो मैं बता रहा था ब्यूना विस्टा सोशल क्लब, लिमेंडर्स की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है जो क्यूबा के अंदर ये ग्रुप है, एक म्यूजिकल ग्रुप है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ब्यूना विस्टा सोशल क्लब, जो विम वेंडर्स ने डायरेक्ट की है, एक म्यूजिकल ग्रुप है क्यूबा का, उसके ऊपर पूछा जा सकता है इस फिल्म का नाम कि ब्यूना विस्टा सोशल क्लब इज डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एनिमेशन फिल्म, फिक्शन फिल्म, ऐसे ही पूछ लिया तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि डॉक्यूमेंट। और कुछ पार्टली एनिमेशन पार्टली लाइव एक्शन, ऐसे लाइव एक्शन एनिमेशन फिल्में हैं कुछ जिसमें दोनों फॉर्म होता है। लाइव एक्शन एनिमेशन एक फिल्म है बहुत पुराने जमाने की, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म थी लाइव एक्शन एनिमेशन के अंदर। फर्स्ट लाइव एक्शन एनिमेशन फिल्म जिसमें 2D एनिमेशन है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लिख लूं मैं, लिख लूंगा, ढूंढ लूंगा मैं, मुझे पता है कौन सी फिल्म है। लाइव एक्शन प्लस एनिमेशन, बहुत फेमस फिल्म है अपने जमाने का। मैंने वो फिल्म एक छोटा सा ऑडिटोरियम है प्रगति मैदान में, वहां पर देखी थी। हाँ जी, तो बिना विस्टा सोशल क्लब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। विमेंडर की फिल्म है, बहुत पॉपुलर फिल्म है, बहुत लोगों ने देखी है, इधर उधर दिखाई भी गई है। आगे आ जाइए, 65 हो गया आपका। नेक्स्ट, विच पाल्म d'Or विनर डिस्प्ले एन एपमैन परफॉर्मेंस इन आर्ट गैलरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिल्म है, इसका पोस्टर मैंने लगाया हुआ है आंसर में, दिखाओ 66 का, देखो आंसर जरा एक बार डाला हुआ है इसका आंसर। आंसर तो डाला हुआ है, वो पोस्टर डाला हुआ है क्या नहीं? कहाँ है? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है ये? 66 कहाँ है? 64, 63, द स्क्वायर, यहाँ नहीं है पोस्टर। ये पोस्टर मैंने अंदर डाला हुआ है पाल्म d'Or के अंदर, पाल्म d'Or में पोस्टर डाला हुआ है, एक आदमी जो है और म्यूजियम में खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं देखोगे वो पोस्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोस्टर है। पेज नंबर 12 पे तो शुरू, हाँ पाल्म d'Or विनर के अंदर होगा वो पोस्टर, पेज नंबर 12 और पहले डाल दो 9, 10, 11, 12, 11 के बाद 12, 13, सेकंड लास्ट में कहाँ पे पोस्टर? ये रहा, हाँ द स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फिल्म भी है, और ये पोस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसको अगर बड़ा करके देखोगे पोस्टर को तो थोड़ा जल्दी समझ आएगा। म्यूजियम के अंदर जो है एक रेस्टोरेंट टाइप का एक म्यूजियम जो है, उसमें इसको बड़ा करके रखा हुआ है। लास्ट ईयर का फिल्म है, इसलिए मैंने डाला हुआ है इसको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, और ये पता भी होना चाहिए कि रिसेंट फिल्मों की सिनॉप्सिस जो है क्या है। तो रिसेंट फिल्म है, पुरानी फिल्मों का ज्यादा ना भी पता हो। विच पाल्म d'Or विनर डिस्प्ले एन एपमैन परफॉर्मेंस इन एन आर्ट गैलरी। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे जो वन वर्ड आंसर है, इसको मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता रहूंगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नाम भी है जो आपको याद रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, बाकी के टाइम मिले तो देख लेना, वरना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, पहला, which one of the oldest international film festivals in the world? 67, Venice. 67, यहाँ से लोग कांस लिख के आते हैं जनरली, बट ध्यान रखना जब तक ना पता हो तुक्केबाजी नहीं कर सकते। इसमें क्या है, तीनों, अभी मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने मल्टीपल चॉइस नहीं बनाया, इसको मैंने इसको एक वर्ड का बना दिया है। अगर पता होगा तो लिख पाओगे। मान लो इसको मैं मल्टीपल चॉइस बनाने बैठता, which one among the following is the oldest international film festival of the world? बर्लिन फेस्टिवल, जर्मनी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल, मनाइम फिल्म फेस्टिवल, कोई और एक नाम डाल दिया। तो अगर आपको पता होगा तो आप लिख पाएंगे, इसलिए मैंने इसको वन वर्ड आंसर करके छोड़ दिया। तो ये एग्जैक्टली जाके देख लो, पता होना चाहिए तो अच्छी बात है। हाँ जी, 68 भी इंपॉर्टेंट है। 68 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये रोजेटा के नाम पर लॉ बना था वहां पर। ये बड़ा रेयरली होता है कि ऐसा कुछ हो जाए फिल्म की वजह से कि उस कंट्री में एक लॉ बन जाए। तो रोजेटा जो है एक लॉ था वहां पर वर्किंग क्लास गर्ल्स के लिए, इस फिल्म की वजह से जो है, इसलिए ये फिल्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका पोस्टर दिखाया मैंने यहाँ पर, नहीं बनाया होगा, वो पाल्म d'Or वाले उसमें कैटेगरी में डाला होगा मैंने वहां पर। तो रोजेटा जो है, इसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी है फिल्म को,
कांस में उस पर्टिकुलर ईयर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट फिल्म है। Ladies and gentlemen, 20 Fading Murnau, silent film, remain timeless. हाँ, ये वाला भी important है। 69 ये 2 बार बनी है। नॉस्फेरातु जो है ये फिल्म 2 बार फिल्म बनी है। एक बार बहुत पुराना फिल्म है ये 20s का, फिर बाद में भी किसी ने अटेम्प्ट किया। कभी कभी कुछ एक फिल्में जो है 2-3 बार भी बनी है, तो ध्यान रखना कौन सी वाली की बात कर रहा है ये। Paul Verhoeven film whose title is linked to the name of the house in which Dutch royal family belongs to. This 70. This is called Soldier of Orange. Paul Verhoeven important आदमी है क्योंकि इसका एक फिल्म आपने देखा हो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज वाले, उसके अंदर जो है एंट्री थी। उसके बाद then he became many of the Hollywood films he has directed. 71 Spanish film. ये क्या डाला हुआ है स्पेनिश फिल्म? क्यों डाला हुआ है क्वेश्चन मैंने? स्पेनिश फिल्म अकेडमी अवार्ड टू द हिंदी फिल्म टॉप 2 इन व्हिच कैटेगरी? अच्छा, क्यों डाला हुआ है मैंने? जनरली जो है तो ऑस्कर जो है वो स्पेनिश फिल्मों के लिए नहीं होता है, बट इसके अंदर कुछ प्रोडक्शन रहा था, कुछ चक्कर था। टॉक टू हर जो है यहीं से जो है ये डायलॉग चला है, टॉक टू मी। कहीं किसी एड फैड के अंदर जो है ये डायलॉग जो है नहीं मैंने सुना है, टॉक टू मी या टॉक टू हर या ऐसे कुछ करके जो है। टॉक टू हर तो ओरिजिनल नाम है इसका, तो वहां से कुछ एक फेमस एड भी है जिसमें वहां से इंस्पायर्ड हुआ था, इसलिए डाला हुआ है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो है इसको अवार्ड किसी और कैटेगरी के अंदर मिला है, स्क्रीन प्ले के लिए, ना कि डायरेक्शन के लिए। इसलिए कंफ्यूजन ना हो लोगों को, या कंफ्यूजन हो जाए इसलिए क्वेश्चन जो है रखा है। हाँ जी, 1999 स्पेनिश पैदल मदोवार won the Academy Award for the Best Foreign Language Film। 72 में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्टिकुलर फिल्म उसकी कौन सी है जिसको उसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर मिला है। तो ईयर भी बता दिया उन लोगों ने, इससे कंफ्यूजन थोड़ा सा अगर हो भी आदमी को, बट कंफ्यूजन कब पैदा होता है? जब आपके पास 4-5 फिल्में होती है। इसकी फेमस फिल्म भी है ऑल अबाउट मदर, इंडिया में भी कई बार बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह में दिखाई गई है इधर उधर। हाँ जी, उसके ये सब स्पेसिफिक नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। एक आदमी से कनेक्टेड बहुत सारी चीजें होती है जो पूछी जा सकती है। तो ये मैंने वो कुछ ऐसे नाम निकाले हैं जो क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है किसी के बारे में जो पूछी जाए। जैसे वाजदा का ये 73 वाली फिल्म है, विच फिल्म डायरेक्टेड बाय वाजदा वाज बेस्ड ऑन ए बुक बाय 1924 नोबेल प्राइज लॉरेट दिस। तो अभी अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप आंसर नहीं दे सकते। नोबेल प्राइज विनर है फालतू फालतू आदमी थोड़ी है। नोबेल प्राइज विनर के नॉवल के राइट्स लेना कितना टेढ़ा बेड़ा काम होता होगा सोचो। किसी का नोबेल प्राइज विनर आदमी है, उससे तुम नॉवल के राइट मांगने चले जाओ, सुभाष गई चला जाए मान, उसको देने वाला है कोई नहीं देने वाला। नहीं, कौन आदमी फिल्म बना रहा है इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट होता है। और वो वही फिल्म है जो नॉमिनेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 74 और 73 का कनेक्शन है आपस में। 73 हाँ प्रॉमिस लैंड, 74 का आंसर लिखा नहीं है यहाँ पर, बट ये वही फिल्म है प्रॉमिस लैंड। 73-74 का आंसर जो 73 में लिखा हुआ 1975 प्रॉमिस लैंड बेस्ड ऑन द नॉवल, ये उसका है। और ये इसका अगले वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है 74 का, वो पहले जो लिखा हुआ है प्रॉमिस लैंड वही आंसर। विच फिल्म नॉमिनेटेड वहां पर। हाँ जी, ये करेक्शन में मैंने डाला हुआ है, आप लोगों को मिला नहीं है, अच्छा करा आपने बता दिया तो मैं आपको कल भेज दूंगा। 75 Which film made in 1958 डायरेक्टेड बाय आंद्रे वाजदा कॉल्ड एशेस एंड डायमंड। ये बहुत फेमस फिल्म है। इसकी 3 फिल्में हैं, शुरू की ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की फिल्में, ट्रिलॉजी टाइप जो है, उसमें से एशेस एंड डायमंड भी है। अबाउट द फर्स्ट डेज ऑफ द कम्युनल पोलैंड वर्ल्ड वॉर 2 इज बेस्ड ऑन द नॉवल। अगेन इसके कुछ एक लोगों के 2-3 फिक्स लोग हैं जिनके ऊपर जो है नॉवल के ऊपर सारी फिल्में बनी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक ही आदमी के नॉवल पे ज्यादातर एक्सप्लोर किया, जैसे जीरो मंजिल ने एक ही आदमी के नॉवल को एक्सप्लोर किया। जितने भी नॉवल के नाम है थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा उसकी फोटो निकालो, उसको कनेक्ट करके देखो, तो पूछा जा सकता है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, अगर डिफिकल्टी उसको बढ़ानी है तो पूछी जा सकती है। इसमें भी नॉवल का नॉलेज से 76 के अंदर भी 77 जो है Two prestigious European film festivals held annually in the Venice and Berlin. What is the name of the award for the best motion picture at these festivals? नाम पूछ लिया है उसने, गोल्डन बियर है या गोल्डन लॉयन है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें लॉयन है किसमें बियर है। कल मैंने ये भी बताया था तुम लोगों को कि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल होता है हैदराबाद के अंदर, जिसमें शायद गोल्डन एलिफेंट, तो ये गोल्डन एलिफेंट कौन से वहां दिया जाता है तो पूछ सकते हैं। बियर है गोल्डन, ये हो गया, गोल्डन लॉयन हो गया,
तो ये मत समझना कि भाई गोल्डन लॉयन बियर पे खत्म हो गया, 2-4 और फेस्टिवल देख लो कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है, कुटली मार के पूछा जा सकता है। गोल्डन पीकॉक कहाँ मिलता है, अगर गोल्डन पीकॉक भी अगर है कहीं अवार्ड में तो देख लेना। हाँ जी, अगेन 76 में भी वही है, नॉवल के ऊपर बेस्ड है। टू प्रेस्टिजियस हो गया। टर्किश डिलाइट बहुत फेमस फिल्म है इसका, टर्किश डिलाइट इन 1973 डच फिल्म डायरेक्टेड बाय पॉल वर्होवन, फिल्म बाय दिस इज बेस्ड ऑन अगेन द नॉवेलिस्ट नेम। ये जो फेमस फिल्में हैं इनके नॉवेलिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनली फेमस फिल्में मैंने वो पीछे डाला भी हुआ है, वो जो है फिल्म्स बेस्ड ऑन नॉवल एंड फिल्म बेस्ड ऑन ऐसे कुछ करके कैटेगरी बनाई हुई है जिसमें सारे डाले हुए हैं, बट उसमें मेनली इंडियन लोगों पे कंसंट्रेट है, इंटरनेशनल लोगों पे कंसंट्रेट नहीं है। इंटरनेशनल लोगों को यहाँ निपटा दिया मैंने। इल्मारिया जी का सबों को पता ही है, वेल नोन बुक व्हाट इज सिनेमा, आंद्रे बजा, ये पूछा जा सकता है। आसान भी है और मुश्किल भी है, जिसको नहीं पता उसको मुश्किल है, आसान है इसलिए क्योंकि पता है। हाँ जी, वोल्कर शामरोव का ये फिल्म जो है 81 वाला 981 जो है, ये मैंने क्यों क्वेश्चन रखा है ये मेरे को समझ नहीं। हाँ, हेनरी बोर्ड फाउंडेशन है इस आदमी के नाम से। 1981 में ये जो वोल्कर शामरोव का फिल्म है इस आदमी के नाम से हेनरी बोर्ड फाउंडेशन है, इसलिए डाला हुआ है। जिस आदमी के नाम पे फाउंडेशन चल रही होगी कितना पैसा होगा सोचो, तो इसलिए मैंने ये फिल्म जो है नाम जो है डाला हुआ है। लॉस्ट ऑन ऑफ कैथरीन बर्न, फिल्म डायरेक्टेड बाय वोल्कर शामरोव, द मूवी बेस्ड ऑन अ रोल बाय गुल्टा ग्रास। मैंने पहले बताया था टिन ड्रम, एक छोटा सा बच्चा है, पागलों की तरह बिहेव करता है, उसकी नॉवल के ऊपर बेस्ड है ये। क्यों? क्योंकि वो भी नोबेल प्राइज विनर है। टिन ड्रम लिखा हुआ है इसमें, हाँ ये रहा टिन ड्रम। द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल इज गोल्डन लॉयन। Cannes Film Festival originally conceived to be alternative for the other oldest. क्या क्वेश्चन बना दिया मैं 84। अच्छा, उसको वेनिस का दूसरे तरीके से पूछा हुआ। ये वेनिस का ही 84 जो क्वेश्चन है दूसरे तरीके से पूछा गया है, घुमा फिरा के जो है कि वो उसके अल्टरनेटिव में कांस जो है चालू हुआ था, कौन सा फेस्टिवल था जो आइलैंड के ऊपर होता है, या एक्चुअली आइडिया ले रहा है कि भाई तुम्हें पता भी है वो कहाँ पे होता है। Highest prize awarded for the best film at the Berlin Festival feature this animal, as it is one of the courts armed in the city. Question क्या है मैंने पूछा है इसमें 85 के अंदर, एक मिनट इसे तकलीफ को पाया 89 88 85। हाँ, ये क्या है कि वो एक एनिमल सा है, वो बर्लिन में एक पर्टिकुलर जगह पे बना हुआ है। एक पर्टिकुलर जगह है, मुझे याद नहीं आ रही कहाँ पे है, वहां से उठा के जो है उन लोगों ने वो इस्तेमाल किया है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला हुआ है इसके अंदर कि द हाईएस्ट प्राइज अवार्डेड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फीचर दिस एनिमल एज इट इज ऑन द कोट ऑफ आर्म ऑफ द सिटी। एक पर्टिकुलर जगह है वहां पे जो है उसको लगाया गया है। जर्मनी में एक थोड़ा ट्रेडिशन है कि इस टाइप की चीजें वो कहीं इम्बेड कर देते हैं किसी उसके ऊपर, क्या बोलते हैं, स्टोन के ऊपर। जैसे स्टुटगार्ट के अंदर जो है वहां पे एक जगह है, वहां पे एक स्क्वायर है, उनका एक ट्विन सिटी रिलेशनशिप है, और उसमें कायरो भी एक सिटी है जिसके साथ ट्विन सिटी रिलेशनशिप है, बॉम्बे भी है। तो उसमें 4 सिटीज के एम्बलम जो है जमीन के ऊपर गड़े हुए हैं, रोड के ऊपर। तो बड़ा पत्थर जो है बड़ा मजबूत पत्थर है, ऐसा ये उपड़ांग का पत्थर नहीं है, हिलेगा नहीं वो आसानी से। रोड उसके ऊपर रोड लोग जाते भी हैं, उसके ऊपर चलता है सब कुछ, ट्रैफिक वैफिक ये हुए वो दूर से पता लग जाता है, बहुत मजबूत पत्थर है वो। तो इस टाइप का ये बैटिंग का चक्कर रहता है, तो इसलिए मैंने ये शायद डाल दिया है। पॉलिश डायरेक्टर, हाँ ये वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉलिश डायरेक्टर आल्सो नोन फॉर डेकोलॉग मेड हिज अक्लेम्ड 3 कलर ट्रिलॉजी, 3 फिल्म्स, ब्लू फॉर वेनिस, व्हाइट फॉर बर्लिन एंड रेड फॉर कांस। तीन जो है अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में वो फिल्म दिखाई गई थी, उसमें कंट्री के फ्लैग का चक्कर है उसका। तो इस डायरेक्टर का नाम बताओ, क्रिस्टोफ किस्लॉस्की। ठीक है जी, ये नाम थोड़ा याद कर लेना, ढंग से तरीके से पूछा जा सकता है इसका कुछ और क्वेश्चन भी। कहाँ गया ये नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 86 का, ये रहा। ये स्पेलिंग थोड़ी सी ध्यान रख लेना, क्रिस्टोफ किस्लॉस्की है, क्रिस्टोफ जानूसी है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलर है हिंदुस्तान में उसका नाम है क्रिस्टोफ जानूसी। मैंने उसकी कोई फिल्म का क्वेश्चन नहीं बनाया यहाँ पे, पता नहीं क्यों, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा मैं भी।
पोलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर क्रिस्टोफ जानूसी है, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए। ये लास्ट ईयर मैं भी क्वेश्चन देख रहा था, वहां पे एक बुक का कलेक्शन पूछा गया है, शॉर्ट फिल्म शॉर्ट स्टोरीज के बुक हिंदी का है, बाता री फुलवाड़ी। ये किसने लिखा है कलेक्शन जो है, तो ये विजय दानदेता की बुक है। तो मैंने हिंदी लिटरेचर के ऊपर एक सेक्शन बनाया हुआ है, हिंदी लिटरेचर की जो फेमस बुक्स हैं उसको लेके। विजय दानदेता की स्टोरी पे मणिकौल ने पहले भी फिल्म बनाया है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है विजय दानदेता। और उसके बाद उसी कहानी पे लेकर जो है शाहरुख खान को लेके दोबारा फिल्म बनाई थी अमोल पालेकर ने, और रानी मुखर्जी थी उसके अंदर। तो विजय दानदेता का कलेक्शन है वो बातारी फुलवाड़ी, उसके नाम से जो है एक कोई मैगजीन छोटा मोटा या न्यूज़पेपर भी चलता है। तो हिंदी लिटरेचर के अंदर जो 50-60 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं उनको जरा ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा सकता है। ये बीच में भी एकदम से याद आया तो मैंने बोल दिया। क्योंकि उसकी बहुत सारी फिल्मों में कोई ना कोई कैरेक्टर इंडिया जाता है। टॉम एल्टर ने भी एक छोटा सा रोल किया किसी फिल्म के अंदर, उसने पूना में शूट किया था, 1975 में कोई फिल्म थी। तो जानूसी के ऊपर भी कुछ पूछा जा सकता है, और वो इंडिया में आ चुका है। विच पॉलिश डायरेक्टर हैज विजिटेड मेनी टाइम्स इंडिया एंड हैज हिज कैरेक्टर गोइंग टू, कुछ वो फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कोस्टा गावरा की जेड के ऊपर पूछा जा सकता है, बड़ी फेमस फिल्म है अपने जमाने की, वन लेटर वर्ड, कोस्टा गावरा जेड। जल्दी ऐसी फिल्मों के नाम होते नहीं है ए बी सी, कभी देखा तुमने फिल्म का नाम बी सी? जेड जो है एक लेटर वर्ड है, तो इसलिए शायद ये आ भी चुका है एफटीआई एंट्रेंस एग्जाम में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा, शायद आ चुका, कंफर्म नहीं है मुझे, बट हो सकता है, नहीं आया तो आ सकता है। ये फिल्म इंडिया में भी रिलीज हुई है, ध्यान रखना। जेड जो है उस जमाने में इंडिया में भी रिलीज हुई है, जहां तक मुझे याद है, पुरानी फिल्म है। हाँ जी, और थ्रिलर विलर होता है तो थोड़ा लोगों को इंडिया में ही मजा आता है, चलो देख लो हॉलीवुड टाइप की फिल्म। हाँ जी, 88 Russian film to win the Palme d'Or at Cannes in 1957. Film is the story of wartime romance about two lovers who are separated by WW2, World War II. 88, इसमें मल्टीपल चॉइस है या क्या है ये फिल्म क्रेन्स आर फ्लाइंग जो है, ये पाल्म d'Or विनर भी है कांस का, ध्यान रखना। ये फिल्म 88 जो है पाल्म d'Or विनर भी है कांस की। अच्छा लिखा हुआ रशियन फिल्म टू विन द पाल्म d'Or एट कांस। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है उधर होना चाहिए था, पाल्म d'Or वाले सेक्शन में होना चाहिए था, यहाँ मैंने इसको डाल दिया, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट बैच के अंदर। पाल्म d'Or वाले में भी है ये पर्टिकुलर ईयर के अंदर, मैंने पोस्टर लगाया हुआ है उसका वहां पर। हाँ जी, 89 सर 88 में जो ईयर दिया 1958, एक मिनट रशियन फिल्म टू विन पाल्म d'Or एट कांस इन 1950। हाँ, ये करेक्शन मैंने उसमें भेजी हुई है, करेक्शंस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर करेक्शन वाला जो हुआ है उसमें मैंने भेजा हुआ है वहां पे। वो 57 नहीं है, ईयर एक दो इधर उधर है कुछ, बट फिल्म यही है, फिल्म यही है, पाल्म d'Or है। ये कहानी जो है और किसी फिल्म के अंदर नहीं है, तो ये ईयर में करेक्शन है उसके अंदर, जो मैंने आपको भेजी हुई है पहले, उसको चेक कर लेना एक बार ध्यान से। हाँ जी, 89 हो गया। वियतनामी फिल्म, ये भी कुछ कंट्रोवर्सी था इस फिल्म को लेके भी, इसीलिए ये फिल्म जो है मैंने डाली हुई है। सेंट ऑफ ग्रीन पपाया जो है कुछ चक्करबाजी था उस जमाने के अंदर। हाँ जी, इधर आइए। रॉबर्ट ब्रेसों की फिल्म फ्रेंच ड्रामा मिशेल इज ऑब्सेस्ड विद पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्टीलिंग। 90 मुशायद तो नहीं है इसमें, पिक पॉकेट। हाँ जी, पिक पॉकेट है ये। इसकी एक फिल्म है जो एक 50 mm लेंस से बनी है, पूरी की पूरी फिल्म है जो 50 mm लेंस से उसने पिक्चराइज की है। या तो वो पॉकेट है या फिर मुशायद है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, दोनों में से एक फिल्म है उसकी। पूरी फिल्म उसने एक लेंस से बनाई है, तो ऐसा नहीं 50 लेंस होंगे तभी फिल्म बनाओगे, एक लेंस से एक फिल्म बन जाती है। हाँ जी, 99 कहाँ पे पहुंच गए? 91 पे। शॉप ऑन द मेन स्ट्रीट, 65 मास्टरपीस अबाउट दिस। इसमें वो बात भी मेंशन होनी चाहिए फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर वाली, तब थोड़ा लोगों को आसानी से याद आ जाती है। क्योंकि 1965 में हो सकता है कुछ और फिल्में भी हों, तो अगर आप पिन पॉइंट कर देते हैं ऑस्कर, तो फिर वो कनेक्शन जो है जल्दी से बन जाता है। शॉप ऑन द मेन स्ट्रीट वाला जान कार्टर की जो फिल्म है। This 1952 Italian film about the old man and his dog, बड़ी सेंटिमेंटल फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, 90 मिनट की फिल्म है। और ये जो अम्बर्टो डी है, ये कैरेक्टर का नाम है, एक बुजुर्ग आदमी है इसके अंदर, अम्बर्टो डी, उसका नाम है ये अम्बर्टो डी।
कुत्ते की कहानी है, कुत्ता है उसका थोड़ा उसको प्रॉब्लम होती है, उसको चुरा लेते हैं, कहीं पे ढूंढता है कुत्ते को कहाँ है सब, तो कुत्ता मिल जाता है उसको। फिर एंड में जो है वो डॉग को यूज करता है भीख मांगने के लिए, उसके मुंह में जो है हैट पहना देता है, तो उसको थोड़ी शर्म आती है, फिर वो उसको जो है कुत्ते को अपने साथ ले आता है। डॉग के ऊपर स्टोरी है ये, बड़ी इमोशनल शॉर्ट्स फीचर फिल्म है, आप लोगों को भी देखनी चाहिए कभी टाइम मिले तो। कॉल्ड अंबर्टो डी। जितनी भी फिल्में हैं डिसिका की, विक्टोरियो डिसिका की, उसमें सबसे ज्यादा इमोशनल फिल्म जो है ये वाली फिल्म है अंबर्टो डी। ठीक है जी। 92 जर्मन एडवेंचर क्लॉस किंस्की, वो आ गया फिर दोबारा से। हजॉग की फिल्म है क्लॉस किंस्की के साथ, स्टाइल द लीड रोल ऑफ स्पेनिश सोल्जर हु लीड अ ग्रुप ऑफ रिवर वाला फिल्म जो मैंने बताया अभी आपको पहले, जो है ये फिल्म पहले भी हमने नाम रखा हुआ है उसका, द रेथ ऑफ गॉड, दोबारा रिपीट हो गई है मेरे ख्याल से। पहले भी हमने यही क्वेश्चन जो है कुछ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुछ दूसरे तरीके से पढ़ा है वो। हाँ जी 63 हाँ, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जर्मन एडवेंचर फिल्म, अच्छा दूसरे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो एक सिनॉप्सिस है वो वहां से दिया हुआ है, इसको एक जगह होना चाहिए, दो रिपीट नहीं होना चाहिए, वही फिल्म है। शायद मैं ये चाह रहा था उस टाइम में कि ये फ्रिस्क्राल्डो की जगह या गुरी की जगह फ्रिस्क्राल्डो होनी चाहिए, तो वो मैं भूल गया उस टाइम। हाँ जी, शिप वाला फिल्म जो है बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है उसका। फिल्म ऑफ विमेंडर व्हिच is about the angel who populate the Berlin and listen to the thought of human being this ये बड़ा एक बड़ा स्पिरिचुअल टाइप का फिल्म है उसका, विंग्स ऑफ डिजायर करके। तो विंग्स ऑफ डिजायर में जो है देखोगे तो समझ आएगा ठीक से, बट ये पूछा जा सकता है, बहुत लोगों ने वो फिल्म देखी है, पता भी है लोगों को उस फिल्म का थोड़ा सा, तो इसलिए कोई भी फिल्म जो अपना थोड़ा सा पॉपुलर हो उसके बारे में। 95 हाँ जी, बड़ा अजीब सा इसका सिनॉप्सिस है, देखो इसमें एक्ट्रेस का नाम डाला हुआ है मैंने, ऑड्रे was probably born to play the title role in this 2001 whimsical depiction of the contemporary Persian film set in this city। तो ये जो है एमिली करके फिल्म है, यहाँ पे पोस्टर उसके भी लगा हुआ है अंकल जी का, एडिटर वो जो कोने में नीचे नीचे पोस्टर है वहां पे कोने ऊपर से, हाँ ये राइट वाला। तो इज एडिटर ऑफ दिस फिल्म, who has worked with couple of other important filmmaker also। तो एक्ट्रेस का नाम आ गया, ये इसकी पॉपुलर फिल्म है सबसे ज्यादा, जो फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर विनर भी है, और उसके अलावा जो है मैक्सिमम रिलीज इस फिल्म का ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है। कुरोसावा's 85 फिल्म दैट इज अ लूज एडेप्टेशन ऑफ किंग लियर। कौन सी फिल्म इंडिया में इससे इंस्पायर्ड है? संजय लीला बंसाली की जो फिल्म है, इंस्पायर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा चुराता है, थोड़ा यहाँ से चुरा लिया, थोड़ा वहां से, कुछ घोड़े घोड़े वाले का जो स्टाइल है मूव करने का, झंडे वंडों का जो स्टाइल है, वो कुछ मसाला इधर उधर से लेता है। तो रान इसकी बड़ी पॉपुलर फिल्म है और बहुत एक्शन है उसके, लंबी फिल्म है थोड़ी सी। इसका पोस्टर जो है वर्ल्ड का एक बहुत फेमस कॉम्पिटिशन है पोस्टर्स के लिए, वहां पे ये जो राम का फिल्म का जो पोस्टर है, इज विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर अवार्ड, बड़ा फेमस कंपटीशन होता है फिल्म पोस्टर्स का। हाँ जी, रान के अलावा इधर आ जाइए, फेलिनी 57 दैट स्टार इज वाइफ एज प्रोस्टिट्यूट 1957। ये मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी फिल्मों में, 2-3 फिल्मों में काम किया है उसने, और ये वही फिल्म है जो पहले वहां पर ऑस्कर विनर जो है, पहले नहीं फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर के अंदर है, नाइट ऑफ कैरिबिया जो है, कैबिरिया, ये नाम याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट टाटा के अंदर भी थी, यहाँ भी है, और उसकी एक और फिल्म जो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है उसकी फेलिनी की, फ्रेड एंड जिंजर, दो लोग हैं जो कभी लवर थे, कुछ सालों बाद दोबारा से उसी सिटी में इनवाइट किए जाते हैं एक टेलीविजन प्रोग्राम को एक साथ करने के लिए। तो पीले रंग का उसका एक पोस्टर है, कहीं देखोगे तो 2 मिनट में दूर से पता लग जाता है। हाँ जी, 1920 horror classics, German television introducing 98। ये फिल्म जो है इसका पोस्टर थोड़ा देखना पढ़ना, ये फिल्म जो है कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, बहुत लोगों ने इसका थोड़ा एक मूवमेंट है जर्मनी के अंदर, आर्ट के अंदर बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फलाना ढिमका,
थोड़े से आर्ट के मूवमेंट को लेके जो है थोड़ा सा पढ़ लेना, एक दो लाइन सिनॉप्सिस जो है थोड़ा एक आइडिया रहना चाहिए कौन सा मूवमेंट कौन सी कंट्री में हुआ है। ये फिल्म जो है बहुत सारे लोगों ने अभी देखिए ये बात 2019 में मैंने बोली है, और लास्ट ईयर जो है सिनेमेटोग्राफी के अंदर, यहाँ पे जो आदमी सिनेमेटोग्राफी का कोई अगर बैठा हुआ है गलती से, तो ये इसके ऊपर जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया बड़े इनडायरेक्ट तरीके से। एडवर्ड मंच का पेंटिंग क्राई दिखाया, स्क्रीम पेंटिंग दिखाया और पूछा गया इससे कौन सा सिनेमा का मूवमेंट इंस्पायर्ड हुआ है, हाउ डज इट अफेक्टेड द मूवमेंट ऑन सिनेमा। तो जो थोड़े से समझदार लोग हैं उसमें एक स्टेप और उन्होंने ऐड कर दिया, एडवर्ड मंच का क्राई स्क्रीम। तो हर चीज सीधी सीधी नहीं पूछी जाती है 2+2=4। जिसके बाद थोड़ा दिमाग है वो लिख के आ गया, जो गधे थे वो घूमते रहे वहां। लास्ट ईयर एक आदमी ने थिएटर किया था, इसके ऊपर प्ले किया था डॉक्टर कैलिगरी के ऊपर। तो कौन सी आर्ट फॉर्म के ऊपर बेस्ड है, शायद ये क्वेश्चन एफटीआई के किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, नहीं भी आया तो आ सकता है, इसलिए मार्क कर लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 98, अगर पुराने टाइप की फिल्मों के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनेगा तो या तो फिज लैंग की एम के ऊपर बनेगा या फिर जो है कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी के ऊपर बनेगा। साइलेंट फिल्म है। हाँ जी, उसके बाद इंगमार बर्गमैन अबाउट द गेम, 7 सील मैंने पहले बताया था, ये फोटो जो है मैंने कहीं लगाया भी हुआ है पीछे की तरफ जो है, इसमें 2 लोग चेस खेल रहे हैं, बहुत ओपन वो है। ट्रम्प ऑफ द विल दोबारा से आ गई। लेनी रेनफिल्स्टॉल का फिल्म जो है वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ द कोविड फिल्म। एक क्वेश्चन भी है, अभी मैं कल अभी देख रहा था कि व्हाट इज प्रोपेगेंडा फिल्म डिफाइन विद दिस क्वेश्चन भी पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, व्हाट इज प्रोपेगेंडा फिल्म। आज ही मैं देख रहा था तो मुझे उसमें क्वेश्चन दिखाई दिया था। प्रोपेगेंडा फिल्म के ऊपर पूछा जाता है, नो फिल्म कैन कम्पीट विद द लेनी रेनफिल्स्टॉल फिल्म। ट्रम्प ऑफ द विल जो है सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी फिल्म है। जिसके बाद कहां पे आ गए हम लोग, 100 हो गया, 101। इसका एक बहुत फेमस पोज है, एक लड़का लड़की को किस कर रहा है और ट्रेन जो है छूट रही है और एक आदमी जो हाथ में लालटेन पकड़ के खड़ी है लड़की, और ये लड़का नीचे खड़ा हुआ है। क्लोजली गार्डेड ट्रेन है वो, 1966 की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर विनिंग फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, खतरनाक फिल्म है वो, कभी टाइम मिले तो देखना। क्लोजली वॉच ट्रेन, क्लोजली गार्डेड ट्रेन भी नाम है कहीं पर इसका, क्लोजली वॉच, कंफ्यूज मत हो जाना, क्लोज और ट्रेन ध्यान रखो बस। क्लोजली वॉच्ड, क्लोजली गार्डेड ट्रेन, ठीक है जी। चेकोस्लोवाकियन फिल्म है ये, जर्मन ऑक्यूपेशन के टाइम का। इसका मैंने पहले ही बताया था कि इसका राइटर जो है उसका नाम पता करो, नॉवलिस्ट जो है किसके नॉवल के ऊपर बेस्ड है, बड़ा अजीब सा नाम है उसका, याद करना बड़ा मुश्किल होता है, बट तुम लोग पेपर देने आ रहे हो तुमको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट मुझे इतना पता है कि उसका नाम जो है इम्पोर्टेंट। 1928 इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि मैंने बताया इस साल जो है जीरी मंजर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने बनाई है, 8 घंटा 9 घंटे की फिल्म है। वो जीरी मंजर से कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्ल ड्राइव की जो फ्रेंच लवर 102 वाली जो फिल्म है, पैशन ऑफ जॉन ऑफ आर्क, मैंने पहले ही बताया था कि कभी कभी कुछ एक फिल्में 2-3 बार बन रही हैं। जॉन ऑफ आर्क वाली जो एक फिल्म पहले भी मैंने बताई थी, इसी में दोबारा लेटेस्ट दोबारा से कुछ साल पहले भी जॉन ऑफ आर्क अटेम्प्ट किया है। पैशन ऑफ जॉन ऑफ आर्क जो है एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल फिल्म है, पर्टिकुलरली कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक एंड व्हाइट जो है साइलेंट फिल्म है अपने जमाने। 1945 ऑल टाइम ग्रेट फ्रेंच मूवी डिपिक्ट दिस फ्रेंच फिल्म एवर। 1963 जर्मन ऑक्यूपेशन 103 चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज। इसके अंदर जो है ये फिल्म मैंने कुछ दिनों पहले ही देखी, तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे कैसे घपला करते हैं वहां जेल के अंदर जो है, उसको लेके जो है ये फिल्म है। उसके बाद लुई बुनुएल की लास्ट फिल्म मैंने आपको बताया पहले भी, लुई बुनुएल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है। बेले दजूर, फिल्म स्टार कैथरीन देनव एज ए वुमन हु डिसाइड टू स्पेंड हर डेज एज ए प्रोस्टिट्यूट व्हाइल हर हस्बैंड इज एट वर्क, ठीक है जी। अगेन बेले दजूर, उसका सिनॉप्सिस डाल दिया है यहाँ पर और बुनुएल की फिल्म का नाम डाल दिया है। 60s के अंदर जितनी भी उसकी फिल्में हैं, 70s के अंदर जितनी फिल्में हैं, कोई भी फिल्म कुछ भी पूछी जा सकती है। 1988 105 एनिमेशन क्लासिक। 106 इसका पोस्टर भी देखना थोड़ा सा, 201 की जो फिल्म है पोस्टर से याद करना आसान हो जाता है थोड़ा।
हाँ जी, 107 1971 Taiwanese film. This is the country of this film. Princess run this Chinese language action film ever to win the prize in Cannes in 107. Touch of Jan. थोड़ा पोस्टर देखने की कोशिश करना, मैं पोस्टर नहीं डाल पाया हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा देखना, याद करना. 93 German story follows a woman who needs to obtain the German marks in 20 minutes to save her boyfriend's life to keep her 108. सबों को पता है फिल्म रन लोला रन. टॉम टॉप यार का फिल्म है जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर अपने साल में जीता था. इंडिया में इसके नाम पर कॉपी फिल्म बनी है रन भोला रन. रन लोला रन का इसका इंडियन वर्जन है. पूछेंगे नहीं जनरल नॉलेज में इसका इंडियन वर्जन बताओ, तो पता होना चाहिए तुम्हें. रन भोला रन जो है इसकी इंडियन वर्जन है. रन लोला रन का रन भोला रन. इंडिया में कितने खतरनाक लोग हैं, कैसी लोग जो है. शायद नंदिता दास है उसमें, इफ आई एम नॉट मिस्टेक. पक्का नहीं है मुझे, बट ऐसा कुछ आइडिया है, पता नहीं क्यों. रन भोला रन जो है ये इसका इंडियन वर्जन है रन भोला रन का. इसमें 3 कहानियां होती हैं, अलग अलग तरीके से उसका एंडिंग होता है. तो इसलिए ये फिल्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन 108 मार्क कर लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस पेज. क्लोजली गार्डेड ट्रेन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. 2011 Iranian by Asghar Farhadi is a recent addition to the list of foreign classic. Simple domestic वही जो हम लोगों ने वहां पे मार्क किया था. फिल्म जो है ये वही आदमी है 109 के अंदर जिसकी 2 फिल्में पहले से फ्रांस के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुकी है. ये वही आदमी है असगर फरहादी. हाँ जी, 110. This remarkable Oscar winning film 201 German drama shows the working that is this cold agent this 1010 110 lives of other. पता नहीं क्यों डाला है मैंने फिल्म. अच्छा ऑस्कर है 110 का ऑस्कर है. उसके बाद सोलारिस. सोलारिस जो है टार्कोव्स्की की फेमस फिल्मों से एक है. उसने 5-6 फिल्में बनाई हैं अपनी जिंदगी में. उसमें एक फिल्म जो उसने स्वीडन के अंदर शूट की है, जो स्वैन निक्विस्ट ने शूट की थी, वो है सैक्रिफाइस. सोलारिस जो है इसका साइंस फिक्शन फिल्म है अपने जमाने का. तो थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि क्या चक्कर है इसके अंदर. 112 पे आ जाइए. डायबोलिक. ये पहले शायद हम लोगों ने कहीं पे कंसीडर किया हुआ है उसको. First Danish film to win the Academy Award for Best Foreign Language. The Delicious movie is based on a short story by the. Why I call the Delicious movie? I means कहीं से पढ़ा होगा मैंने. Delicious movie का मतलब क्या है? 113 के अंदर, क्योंकि ये खाने से लेना देना है. डबल्स फीस जो है गांव के अंदर छोटी सी गांव है, बहुत लॉन्ग शॉट से चालू होती है फिल्म. धीरे धीरे हो जाती है, बहुत लंबा लॉन्ग शॉट से. जूम शॉट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. ओपनिंग किसी फिल्म की ऐसी हो पाए. छोटा सा गांव है, धुआं निकल रहा है, 4-5 घर है वहां पर, और उसी में खेल चलता रहता है. खाने के ऊपर फिल्म है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डिलीशियस फिल्म. हाँ जी, यहाँ तक मार्क कर ले हम लोग. जैसा कि मैंने बताया, इसमें से ध्यान से जाके आप लोग कुछ फिल्में जो मैंने मार्क की है उसके सिनॉप्सिस पढ़िए, वरना वो याद नहीं है. पूछने को पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में नहीं है, पर फिर भी कोई आदमी पागल हो जाए उसका कोई इलाज नहीं होता है. पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट फिल्में हैं, जैसे असगर फरादी की ऊपर पूछा जा सकता है, पैशन ऑफ जॉन आर्क के ऊपर पूछा जा सकता है, फिज लैंग की वो फिल्म है उसके ऊपर पूछा जा सकता है, ये वाली जो फिल्म है नाइट कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी के ऊपर पूछा जा सकता है. कौन सा आर्ट का मूवमेंट है उस फिल्म के अंदर, दूसरे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. जितने भी ये मूवमेंट है आर्ट के, वो जो है थोड़ा 2-2 लाइन में थोड़ा आइडिया होना चाहिए. और अगर कोई फिल्म उसमें बेस्ड है तो वो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए. ठीक है जी. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा फुल स्टॉप लगा लेते हैं. 113. So today we would be beginning with where we left, and in between we will also keep adding few more questions which are not here. So we were at a point which is yesterday we left at question number 113. So question number 114. We will start from the question number 114. So question number 114, first or through 4. A film about theater during World War II, a Jewish director. Okay.
World War II Jewish director, hides in the cellar for the duration of the war, and his wife runs the theater. Same film, I have given a poster of this film also, The Last Metro, where the Jean Depardieu and Catherine Deneuve. Catherine Deneuve is the lead actress of that film, and Jean Depardieu, who is considered as a Amitabh Bachchan of the France, has acted as a lead in that film. So if you look at the poster, I have given the poster somewhere over there of The Last Metro, maybe in the European best foreign language category, it might be there. So just check it out. So this is The Last Metro. Now, Russian film having a famous scene, the baby carriage on the steps, Battleship Potemkin. This scene is always discussed. A film directed by Sergei Eisenstein, not Einstein, but Eisenstein. Write down this name, Sergei Eisenstein. Not Einstein. If the Einstein we will take, then it will be a wrong answer. Confusion can happen with Einstein versus Eisenstein. He is a Russian filmmaker who has made a couple of films. Any film directed by him can be a question of the general knowledge for anybody, remember. Okay, not only for the editing, that man is important because his films are being discussed because of montage. Montage is also important for you. So we will give you some notes on the montage also later on at some point. So that's why I was also thinking that if I could rope in, it would be a good idea to, because many things you may not be able to take up. So montage this is a very famous film in which this little kid into that carriage steps down, falls down, and then run, and there is a very interesting sequence and drama is being created in that film. So sometimes they will give you a hint, but among this thing, 115 is a very important question. Again, 1997 Austrian thriller whose plot involves two young men who holds a family hostage and torture them with a sadistic game is not so laughable. 116, Funny Games. Not so important film, but I have still included because it was a controversial for different reason. 1991 comedy set in the post-apocalyptic France. The story set in the apartment building that is owned by a butcher specializing in a different kind of meat. One of the wickedest movie you have ever seen, 1997. Delicatessen. The name of the film is called Delicatessen. This film was screened in the Bangalore International Film Festival when I was in my first year of 1991. Question is, who directed this film? Which is not written here. Who directed this film? So it's the same guy who directed the film called Emily. He's the same guy who directed the film called. Now, who directed Emily? Who directed Emily? It's one of the most popular French films. So try to remember all these names. Person who will be. I was just talking to someone today. Interesting information I received that last year also, this year also, they have collected various questions from various departments. Say FTII. One department will frame certain number of questions, say for example 100 questions. 100 questions they will collect from SRFTI. They will not ask me obviously, but they will ask maybe some South Indian institute like Adyar Film School, maybe some other place, say for example LV Prasad Academy or somewhere, because nobody knows what question would come. So if they will ask me, for example, why should I give my wisdom of benefit? You frame your question, why should I give it? But sometimes government institution, like Adyar is a government institution, so they have a compulsion to formulate a question. So they are collecting various questions from various places here and there. So different kind of minds are working for the formulating the final question paper. Okay, so it's a good that they are asking technical people, particularly, say for example, for cinematography, they have asked the HOD from SRFTI, who is teaching the digital cinema over there. So there will be much more technical questions, particularly for cinematography course. It does not mean that there will not be a technical question. There will be a little more complex question for other department, which I'll discuss in the specific class of that 1 hour, which I will be also conducting. There will be a lot of references are required when you will be able to answer those questions. Otherwise, it will be difficult because they have given some statements in the past and they ask you to interpret. Then it becomes difficult if your references are not clear what you're going to write down. Okay, so it's the same guy who directed the film called Emily. 1960 classics that depict the
decadence of modern society introduced to the world paparazzi to the world, but remembered for Anita Iqbal dancing in Privy Fountain. Life is sweet. It's the same film which I have given a poster over there. La Dolce Vita is the name of the film. Sweet Life of Italy is the name of the film. And Marcello Mastroianni acted in most of his film. This might be a question: which actor has acted in most of the films? Say, for example, they will pick up some 3 weird names, and then they will ask you who worked with them. So, for example, I was also looking in today. Akira Kurosawa worked with most 16 films. There's an actor called Toshiro Mifune. Write down his name. Toshiro Mifune acted almost 16 films of Akira Kurosawa till Redbeard. They had a fight, and after that, they never worked together. So sometimes some of the actors are known because of, like Satyajit Ray. Soumitra Chatterjee has acted in most of his films. Marcello Mastroianni, most of the film of Fellini. कुछ अंदाजे से लिख ले, गूगल में आकर ढूंढ लियो. मुझे भी उतना ही पता है जितना तुझे पता है. तुशिरो, Tushiro, तुशिरो म्यूफेन, Mifune. अगर ये स्पेलिंग उठपटांग हो तो अकीरा कुरोसावा की लिस्ट में जाओ, क्लिक करो, वहां पे उसका एक फिल्म है रोशमन में क्लिक करके एक्टर का नाम आ जाएगा सबसे ऊपर. वहां से स्पेलिंग याद कर लो. दूसरे की तरह मुझे नहीं एफटीआई जाना है, तुमको जाना है. तो मुझे इतना आइडिया है तुशिरो म्यूफेन, क्या उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कुछ भी है, बट मैं फिर भी आंसर दे दूंगा, तुम नहीं दे पाओ. तो तोशिरो म्यूफेन. इसी टाइप से हर बड़े डायरेक्टर का कोई ना कोई एक फेवरेट एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, उसके अंदर वो लोग जो है दे वर्क टुगेदर. तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा 16 फिल्में उसने तोशिरो म्यूफेन ने उसके साथ की है. ऐसे ही पोलैंड के अंदर अंधे वाजदास की फिल्मों में एक पर्टिकुलर एक्टर है जो उसके साथ, वाजदा की काफी फिल्मों में ट्रिलॉजी के अंदर है. तो कई बार बहुत सारे लोग जो है एक ही आदमी के साथ काम करते हैं 8-10 फिल्मों के अंदर. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज वर्कड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म. देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, ये भी एक तरीका है. मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हु हैज डन द, जैसे संजीव कुमार ने ज्यादातर फिल्में की हैं किसके साथ, गुलजार के साथ. खड़क है हमारी खोपड़ी के अंदर. अब तुम हम तो केरला से आए हैं, हम तो हैदराबाद से आए हैं, तो कोई मतलब नहीं. केरला से आया तो हम क्या करें, हैदराबाद से आया तो हम क्या करें. क्या क्यों आ रहे हैं? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ. Particularly down the south people, South Indian people need to remember it very carefully. This time they asked the name of short story collection book by विजय दान देथा. अभी मैंने नाम बताया आपको, तो ये कोई मतलब नहीं होता कि हम साउथ से हैं तो हमें पता नहीं है फलाना ढिमका. हिंदी का नाम क्यों पूछ लिया गया? विजय दान देथा नहीं मालूम, गांव जाओ खेती करो, बात खत्म. That is their theory. So you have to remember all national celebrities, whether it's a Hindi literature, English literature, Malayalam literature, Kannada literature. So last year विजय, हिंदी का विजय दान देथा का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पूछ लिया गया था, इसलिए सब लोगों को हिंदी के इंपॉर्टेंट लोगों का नाम भी याद करना है, खास तौर पे जो केरला में बैठे हुए हैं. आ जाओ स्टेट अपने उसमें. So these are national level figures. So no question of regionalism would help you. You have to be very, very thorough with all the national figures, particularly with the Hindi cinema. 202 Brazilian crime film by Fernando Meirelles that traces the devolution of a housing project from 60s to the 80s and shows unflinching gang warfare. 119. City of God. ये एक बड़ा खतरनाक फिल्म है इन द सेंस इसका ओपनिंग सीक्वेंस जो है, धार लग रही है चाकू के ऊपर और वहां पार्टी चल रहा है और उसमें कुछ चिकन काटते हैं और भाग रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग. इतना इंटरेस्टिंग है कि मैंने शुरू का जो सीक्वेंस है यहाँ से चोरी किया म्यूजिक का ट्रैक, और एक डॉक्यूमेंट्री मैंने फिल्म बनाई थी, नाम नहीं बताऊंगा तुम्हें, उसके अंदर बिगनिंग में 2 मिनट का जो ट्रैक है वो वहां का ऑडियो लगा के मैंने वहां चेक किया. खतरनाक ट्रैक है, उसमें कुछ चेंजेस किए. काटने वाले सीक्वेंस मैंने कहीं और से उठाए, पार्टी के सीक्वेंस मेरी अपने किसी म्यूजिक वीडियो के थे वहां से उठाए, तो वीडियो मेरा है, ऑडियो कहीं और का है. कभी कभी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज होती है तो इसलिए मुझे फिल्म जो है याद है. हाँ जी, आप भी देखोगे तो आपको भी आसानी से मिल जाएगा. This 1928 film that saw the debut of a great Spanish director Luis Buñuel is best remembered for a scene in which razor slices the eyeball. बता चुका हूं मैं आपको, आंशे आंदलू.
ये सब ऊट पटांग के नाम याद करने पड़ेंगे आप लोगों को अगर FTI जाना चाहते हो। 1960 French romantic crime drama film from Jean-Luc Godard that is remembered today for its bold visual style and use of a jump cut. Godard का सबसे पॉपुलर फिल्म जो है ब्रेथलेस। Godard का सबसे फिल्म जो है ब्रेथलेस है। पॉपुलर मतलब फर्स्ट फिल्म है, तो इसके लिए जंप कट के लिए भी जाना जाता है। जंप कट क्या होता है ये भी तुमको बताओ। जंप कट क्या होता है ये एडिटिंग वालों को ही नहीं पता होना चाहिए, डायरेक्शन के लोगों को भी पता होना चाहिए। उसका तरीका क्या है, एक नोट्स ढूंढना चालू करो, गूगल पे बैठ के सब चीजें क्लास में नहीं कराई जाएंगी। ढूंढो व्हाट इज जंप कट। मैं भी लिख लेता हूँ थोड़ा सा, एडिटिंग वालों से पूछ के थोड़ा सा इसके ऊपर अगर नोट्स कुछ बन पाए, कहीं से मिल पाए तो तुम लोगों को फोकट में मिल सकता है। व्हाट इज जंप कट। ब्रेथलेस का उदाहरण जो है आपको आसानी से गूगल में ढूंढोगे, इधर कुछ ना कुछ लिंक जो है आपको मिल जाएंगे जो जंप कट की बात कर रहे हैं। कोई सीन जो गूगल में जाओ, यूट्यूब के अंदर जाओ, गोदार्स ब्रेथलेस अबाउट डिस्कशन अबाउट जंप कट, तो उसमें लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट डाली होती है। हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी लोगों के पास बहुत टाइम बर्बाद करने के लिए होता है, तो ये सब काम जो है करते रहते हैं। जंप कट के ऊपर आपको आर्टिकल मिल सकता है, पूछ सकते हैं लोग। Describe about the use or introduction of jump cut in cinema with an example of any film which you have seen in your life. तो ब्रेथलेस डालोगे तो समझ आ जाएगा, और भी डाल सकते हो, बट ये सबसे पॉपुलर फिल्म है। It is a 1954 world classic that follows the story of a village of farmers that hire a group of warriors to combat the bandit who will return after harvest to steal their crops. 122 सबको पता होना चाहिए फिल्म। सेवन समुराई, इसके ऊपर शोले की कॉपी भी लोग कहते हैं, शोले भी वहां से कॉपी है। थोड़ा थोड़ा मसाला उठाया हुआ है शोले में, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से, तो एक बेसिक आइडिया वहां से भी दिया हुआ है। सेवन समुराई में भी वही है, तो शुरू में फिर ओके। भाई खोल दोस्त, ओके, इसमें वो डालना भूल गए थे कलम। हाँ जी, 1993 ड्रामा दैट एक्सप्लोर हो गया। अच्छा, अनदर कुरोसावा क्लासिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, अभी मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। Another Kurosawa classic, this examines the struggle of a minor Tokyo bureaucrat and his final quest for meaning via the construction of a public park. 123 Akiro, इसके अंदर एक बहुत खतरनाक सीक्वेंस है जो मुझे याद है, वो साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है, साउंड रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों साउंड रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसलिए कि जब वो बाहर निकलता है तो एकदम से एकदम गुमसुम हो जाता है, साइलेंस है पूरे, जबकि ट्रैफिक चल रहा है इधर उधर, ट्रैफिक चल रहा है, जब उसको पता लगता है तो जैसे रोड पे आता है तो उसको कुछ नहीं सुनाई देता। तो अगर आपको रोड पे खड़े हो और आपको ये मुझे दिखाना है कि तुम्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा और तुम खोए हुए हो अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, so how you will show it? You will not show the sound happening over there. तो sound track become mute in that particular sequence. तो ये ढूंढना उसके अंदर जाके मुझे भी मिलेगा तो मैं भी बताऊंगा, तुम भी ढूंढना, ठीक है? दोनों करोगे तभी कुछ हो पाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है इसके अंदर। हाँ जी बोलिए। सब लोग करते हैं, कोई ना कोई इधर उधर से कॉपी कर लेता है, बट असली फिल्म ये है जहाँ से लोग उठाते हैं मसाला। स्पीलबर्ग की कौन सी फिल्म है जिसमें यूज किया है उसने, बताओ? मैंने देखा नहीं ज्यादा स्पीलबर्ग। म्यूनिक मैंने देखा नहीं है। म्यूनिक में क्या सीक्वेंस है जिसमें वो साइलेंस है पूरा का पूरा? हाँ, वो इन्होंने भी किया है मद्रास कैफे के अंदर, घपला वहां भी किया है साउंड का। एक इंटरव्यू हमारे पास विश्वदीप चैटर्जी का, उसमें ही इज डिस्क्राइब्ड अबाउट इट। ये कुछ इंटरव्यूज भी मैं आप लोगों को मेल करूंगा, पीडीएफ फाइल है, तो इनको भी पढ़ना थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो उसमें डिस्क्राइब अबाउट द साउंडस्केप ऑफ दिस व्हेन यू गो टू मार्केट, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन वो आए हुए हैं डायरेक्शन वालों के लिए, जनरल टाइप के। लेट मी जस्ट go through now questions properly so that I could formulate those questions later on. हाँ जी, ये हो गया तुम्हारा कौन सा बॉम्बर? 123 हो गया, 124 हो गया, 24 की बात हो रही है। हाँ जी, 1993 drama that explores the effect of China's political turmoil during the mid-20th century on the lives of individual families starts in a Peking opera troupe, and a woman who comes between them remains to date and only Chinese language film to win the Palme d'Or in Cannes. इस फिल्म के बारे में खास बात एक और ये है कि ये यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा रिलीज जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, ये तो फिल्म कॉन्क्यूबाइन
This is one of the most seen film in Europe from the China. आज हम लोगों ने हीरो फिल्म दिखाई थी जो जैंग यिमो का कैरेक्टर है। ये तो वैसे ही रखा हुआ है अपने वहां रंग बिरंगा करने के लिए। हाँ जी, तो again coming to the same film, which minted a lot of money in Europe, Farewell My Concubine. Whoever thinks all animal is about cute character need to see this gut-wrenching 1988 Japanese film that narrates the harrowing tale of two orphaned Japanese children during World War II. Grave of the Fireflies बहुत ज्यादा important film नहीं है, but फिर भी क्या है, documentary है, थोड़ा कुछ documentary है, international जो documentary है उसमें भी इसका नाम आता है। हाँ जी, 125 हो गया, 126 This popular 1952 work of René Clame हमने पहले बात की है, Forbidden Games है। ओजू का एक फिल्म है 1953, इसकी एक फिल्म जो सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म है, you must watch it, I Was Born But, फिल्म का नाम है I Was Born But। इसकी एक सीरीज भी है, स्प्रिंग ऑटम ऐसे करके जो है, वो भी पूछी जा सकती है कि ये सीरीज किसकी है। उसमें कंफ्यूजन कहां से पैदा कर देंगे, एक फिल्म है, एक फिल्म मेकर है, उसने फिल्म बनाई है जिसमें 3 सीजन्स को लेके है, ऑटम, समर, स्प्रिंग ऐसे कुछ करके नाम है उसका, एग्जैक्ट नाम मैं बता दूंगा आप लोगों को कल जो है, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ, 3 सीजन फिल्म। कंफ्यूज मत हो जाना कि वो ओजू वाली फिल्म है या किम की दुख, उसका नाम किम की दुख है, किम की दुख का फिल्म है, 3 सीजन्स को लेके है, ऑटम, समर ऐसे कुछ करके, तो एग्जैक्ट नाम ढूंढना है। थोड़ा मैं हिंट देता हूँ तो तुम लोग पकड़ लिया करो उसको, फिर ढूंढा करो जाके बाद में। हाँ जी, lengthy 1982 film from Ingrid Bergman that follows the lives of a brother and a sister in an aristocratic Swedish family, 2028. Fanny Alexander. This is a film which got the Oscar for Sven Nykvist also. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटा सा बच्चा है, क्यूट सा, छोटे बच्चों को लेकर जो बेहतर फिल्में बनी है उसमें फैनी अलेक्जेंडर भी सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म है। देखो टोक्यो स्टोरी आ गया, ये 127 जो फिल्म है, ये इंपॉर्टेंट फिल्म है उर्दू का, टोक्यो स्टोरी, और वो जो सीजन के ऊपर फिल्म है ऑटम, समर ऐसे कुछ करके 2-3 फिल्में हैं जो आपको नाम पता होने चाहिए। सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड है ऑस्कर, जो है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज, सॉरी बेस्ट ऑस्कर फॉर सिनेमाटोग्राफी स्वेन निक्विस्ट, जो नाम मैंने दिखाया था, इस आदमी को मिला हुआ है इस फिल्म के लिए, फैनी अलेक्जेंडर के लिए। ठीक है जी, 1928 हो गया, 129 38 फिल्म रनिंग लेंफिंस्टॉल, डॉक्यूमेंट्री सर्टेन स्पोर्ट इवेंट। अच्छा ये एक अलग डॉक्यूमेंट्री है, अलग इन द सेंस controversial due to its political context, however it is still considered great as it pioneered advanced motion picture technique that became industry standard, advanced motion picture techniques। ऐसा क्या कर दिया उस फिल्म में जो advanced motion picture technique आ गई? नया क्वेश्चन है। लेनी लेंफिंस्टॉल की ज्यादातर फिल्में मैंने बताया आपको हिटलर के ऊपर, तो ये एक फिल्म है उसका जिसका नाम है ओलंपिया, 129। थोड़ा इसके बारे में पढ़ना तो थोड़ा सा और आइडिया आपको लगेगा। जॉन रनोआ, ये 60s का एक इंपॉर्टेंट आदमी है, इस फादर वाज ए फेमस पेंटर कॉल्ड रनोआ, सबको पता होना चाहिए उस आदमी का नाम। 37 classics set in the German post-war camp that explore relation between the second French officer and a German commandant, 1930। ग्रैंड इल्यूजन पूछा जा सकता है, रनोआ की जो सबसे पॉपुलर फिल्म है वो ग्रैंड इल्यूजन है। एक और फिल्म है इसका, मेरे को याद आएगा नाम बताऊंगा। हाँ जी, 130 खत्म। तो पॉपुलर नाम है, उसमें छोटा मोटा क्वेश्चन बना दिया मैंने, जिससे अगर आपको पूछना, लोग पूछे तो कैसे पूछेगा। हाँ जी, 1931 जितनी भी फिल्में वॉर के ऊपर बनी है उसमें सबसे पॉपुलर जो फिल्म है बैटल ऑफ एल्जियर्स। रट लो तोते की तरह इस आदमी का नाम, जीलो पोंतिकोवो, नाम रट लो, और ये बैटल ऑफ एल्जियर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये इसका थोड़ा सा आइडिया है। 1966 वॉर क्लासिक्स ऑफ Gili Pontekovo has been critically celebrated and is often seen as an important documentary, actually documentary drama है, important commentary on the urban guerrilla warfare set in the Africa country where France was the occupier।
तो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, ये नॉमिनेटेड है या विनर है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के अंदर भी, देख लेना ध्यान से वहां पर। टाइटल ऑफ दिस 1985 9 hour 36 minute by Claude Zinman literally means Holocaust in Hebrew। 132 शोहा करके एक फिल्म है, कोई मैंने नहीं देखी, सुना है मैंने, बस बहुत सारी फिल्में सुनी है, देखी नहीं है। आप लोगों को भी जरूरी है कि आप भी उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। कितनी लंबी फिल्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई लंबी फिल्म ऐसी कोई बना दे कोई आदमी। अगेन 1988 इटालियन वर्क में जी तरनातोरे इज वही सिनेमा पैराडाइज वाला आदमी, इज ए नॉस्टैल्जिक इवोकेशन ऑफ दिस चाइल्डहुड एज वेल एज फॉर द टाइम व्हेन ही गोइंग टू मूवी वाज पास टाइम, वो सब जो है सिनेमा पैराडाइज। 133 इज सिनेमा पैराडाइज। ठीक है जी, लंबा सा क्वेश्चन बन रहा है बट घबराना मत, बहुत जगह होती है पेपर में, कोई पागल आदमी बैठ गया तो लाइन नहीं गिनने बैठते, वहां 4 लाइन गिर रही है पेपर ज्यादा हो जाएगा, ये सब मतलब नहीं होता। तो सोचो कि लंबा क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्कि ये फिल्म पॉपुलर है, बहुत लोगों ने देखी है, हिंदुस्तान में 2 बार इसकी कॉपी हो चुकी है। 1931 classic from Fritz Lang, often considered his best work, deals with the disturbing subject of the child murder, and the star Peter Lorre can't be too difficult to guess a one-letter title। यार ये सब लोगों को लिखा हुआ साइड में देख लो, वरना एम के नाम से फिल्म है। अब एम रख देगा कोई, जेड रख देगा, तो ये मत समझना वो जेड जो है गुस्ता कामरा का फिल्म है, एम जो है फ्रिज लैंग का फिल्म है। फ्रिज लैंग जो है वही आदमी है जो गोदार्ड की कंटेम्प्ट के अंदर डायरेक्टर का रोल करता है। गोदार्ड की जो जॉन गोदार्ड की फिल्म है कंटेम्प्ट, जिसमें ब्रिजिट बार्डो है, कार्लो कॉन्टी ने प्रोड्यूस की थी फिल्म, जो कल मैं बता रहा था, सोफी लॉरेन का हस्बैंड, ये वही आदमी है, ध्यान रखना। फ्रिज लैंग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच फिल्म ऑफ द गोदार्ड फ्रिज लैंग वर्क एज ए एक्टर इन हिज ओन कैपेसिटी एज ए लैंग। तो ये पता होना चाहिए, कंटेम्प्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट फिल्म हो जाती है गोदार्ड की कि इसमें फ्रिज लैंग जैसा बड़ा डायरेक्टर, लेकिन अब सोचो मनी रत्नम जैसे डायरेक्टर को पकड़ लाओ तुम अपनी फिल्म में, किसी एज ए मनी रत्नम नहीं होंगे, तो थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट जो है। हाँ जी, 1976 Russian classic by this must be one of the powerful films, this 135 Ascent, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रख लो। 92 क्लासिक मुर्नौ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, FW मुर्नौ। फ्रिज लैंग के बाद जर्मनी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसके बाद पहले नहीं है। is an unauthorized adaptation of this Dracula, deals with the change because of the studio could not obtain the rights of the novel, introduced many vampirish myths। 136 नॉस्फेरातु, हर आदमी ने इस सब्जेक्ट को लेके अटेम्प्ट किया है, हर्जॉग ने भी एक बनाई है फिल्म, ठीक है, ध्यान रखना, बट ये हर्जॉग वाली फिल्म नहीं है, ये FW मुर्नौ वाली फिल्म है। हर्जॉग ने भी नॉस्फेरातु बनाया है, इसने बनाया, एक फ्रेंच आदमी ने भी बनाई है। जब एक सब्जेक्ट पे 5-6 लोग फिल्में बना रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में देवदास बना दिया 4 लोग लोगों ने, शहीद भगत सिंह बना दिया 5 बार। इस तरीके से जब कोई ऐसा कैरेक्टर इसके ऊपर फिल्म बनती है। 1950 work of the Kurosawa made from the story of this depict a crime from multiple point of view, makes us question if there is anything such as absolute truth। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोशमन, सबको पता है ये, तुमको भी पता होना चाहिए। वही कहानी है, 5 मर्डर होते हैं, 5 मर्डर नहीं होता, मर्डर एक ही होता है, 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है कौन सा ठीक, उसमें एक क्लू है फिल्म के अंदर, छोटा सा हिंट दिया है फिल्म मेकर ने कि असली जो है कौन से वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि 5 के 5 असली है, बट असली 5 नहीं है, एक उसमें से डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। रोशमन, बहुत लोगों ने इसके ऊपर नाटक किया है, नाटक बहुत लोगों ने नहीं किया बट किया है हिंदुस्तान में भी रोशमन पे प्ले, और सिनेमा के अंदर इस फिल्म ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। रन लोला रन का जो आइडिया है वो भी यहीं से उठाया गया है, एक कहानी 3 पर्सपेक्टिव। एक और फिल्म है क्रिस्टोफ किस्लोस्की का, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, उसमें भी 3 या 4 कहानियां हैं, एक ही उसको लेके अलग अलग पर्सपेक्टिव। तो एक पर्सपेक्टिव के ऊपर 3-4 डिफरेंट एंगल से इंडिया में भी वाहियात फिल्म बनी है, ये कहानी को लेके 4 पर्सपेक्टिव है उसके अंदर,
बस उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये 3 फिल्में इंपॉर्टेंट है, एक किस्लोस्की की जिसमें अलग पर्सपेक्टिव से एक ही इवेंट के ऊपर 3 नरेशन है, रन लोला रन टॉम टॉम केयर का फिल्म है वो, और असली जो फिल्म है जहां से लोगों ने सब आइडिया उठाया है ये। अगर आप लोगों ने एक फिल्म देखी हो गलती से, इंडियन फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मॉनसून शूटआउट, अमित कुमार का फिल्म है, उसका भी सीड आइडिया यहां से ही दिया गया। ठीक है, तो ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पता होना चाहिए सब लोगों को रोशमन क्या है। हाँ जी, ये भी पूछा जा सकता है उसमें 5 स्टोरी है रोशमन में, 6 स्टोरी है या 7 है या 4 है, बड़ी छोटी सी बात है ये। पर एग्जैक्टली तुमने ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर कि 3 थी 4 थी 5 थी, बच जाओगे। 4 है या 5 है ये चेक कर लेना कितने उसमें नरेशंस है एक इवेंट में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है 4 है 5 है 6 है या 3 है, रन के अंदर कितने हैं और वहां पर, और उसमें कितने हैं, क्या बोलते हैं ये क्रिस्टोफ किस्लोस्की की जो फिल्म है उसमें कितने हैं, तो इसमें कितने नरेशन है वो थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है इसके अंदर 3 है 4 है 5 है। हाँ जी, 3 4 5 ये मैं भी थोड़ा लिख लूं, 4 5 पर्सपेक्टिव ऑन द सेम इवेंट। एक घटना होती है, 5 लोग बता रहे हैं 4 लोग बता रहे हैं, कोई कह रहा है ऐसे हुई है, कोई कह रहा है ऐसे हुई है। अब ये जो ऑथर का नाम मैंने क्यों लिख दिया उटपटांग तरीके से, अजीबोगरीब सा नाम है ये, याद नहीं होता है कुछ, बट इसलिए डाल दिया। हो सकता है कोई आदमी इसको ऑथर से बड़ा प्रेम है, किसकी कहानी पे बताओ, तो ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि रोशमन किसकी कहानी पे बेस्ड है। रोशमन कुरसावा का फिल्म है, ये तो सभी को पता है, तो किसकी कहानी पे बेस्ड है ये बात कैसे पता लगी। ये भी कोई पूछ सकता है कि किसकी कहानी थी इसके ऊपर कुरसावा की फिल्म। मैंने एक प्रिंट आउट निकाला है व्हाट इज सिनेमा करके, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा डायरेक्शन वाले स्टूडेंटों के साथ, उनके मतलब की चीज है, एक्टिंग वालों का टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर इंटरप्रिटेशन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसकी किताब में छपा हुआ है, समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी नाम की किताब है उसकी। समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी का मतलब ऑटोबायोग्राफी ही है, उसमें नाम ऐसा उपरांत रखा है समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी। उसमें रैंडम नोट्स जो है कुरसावा की किताब अपने जो बायोग्राफी है पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। कुरसावा के ऊपर है, नसरुद्दीन शाह की जो बायोग्राफी है वो भी पूछी जा सकती है। आज उसका नाटक भी है शाम को, टिकट नहीं मिलेगा इतनी आसानी से, जाने की सोचना नहीं। एनएसडी में नहीं है, कमानी ऑडिटोरियम के अंदर 7 बजे वाला शो है, मेरे पास भी टिकट नहीं, ऑनलाइन आधे घंटे में बंद हो जाता है बेटा, टिकट नहीं है फिल्म में जाऊंगा, खुद नहीं जाऊंगा, 2 लोगों को लेके जाऊंगा, 3 लोग जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। उसकी बायोग्राफी पूछी जा सकती है नसरुद्दीन शाह की, कुछ बोलता रहता है उठपटांग इधर उधर, जिसकी वजह से न्यूज में रहता है। तो जो आदमी कुछ न्यूज में रहता है उसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Ang Lee 2000 classic that is highest grossing foreign language film in American history. क्या इसमें छोटा मोटा सा ही बन गया है, बोला 138 में करेक्शन है छोटी सी। तो एंग ली का फिल्म सब लोगों को बताइए, बताने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ जाओ। इसका मीनिंग पूछ सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये बड़ा अजीबोगरीब सा टाइटल है, क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। इसका मतलब क्या, लिख लो तुम भी, इसका क्या मतलब है। वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, और ऐसे ही क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन, क्या मतलब है, क्यों रखा है नाम, पूछ सकते हैं। तुम थोड़ी बोलोगे यार हमको नहीं पता ये क्या है, क्या बता दिया तुमने, नहीं पता तो। ये पॉपुलर नाम है, हिंदुस्तान में फिल्म लोगों को दिखाई गई है, ऑस्कर इकट्ठे किए हैं इस फिल्म ने, तो इंपॉर्टेंट फिल्म है, पूछा जा सकता है। तो पॉपुलर फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन, व्हाई दिस टाइटल गिवन टू द फिल्म। ज्यादा पागल आदमी होगा वो पूछेगा वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, और जो थोड़ा कम पागल होगा वो ये पूछेगा। पॉपुलर फिल्म है, सबको पता है, तुमको नहीं पता तुम भी पता करो। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 139 हो गया। 140 नहीं 130 नहीं 138 1 है। मिज़ोगुची भी जापान का पॉपुलर नाम है, इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है। इसकी भी 4-5 फिल्में रट लेना, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फिल्में हैं। 1953 गॉस मूवी, इफ यू डोंट नो दिस यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। किसी ने स्टेटमेंट बोला है तो मैंने उठा के वहां पे चिपका दिया। 139 क्या आंसर दिया हुआ है इसने? हाँ जी, अच्छा, इसका पूरा नाम है उगेत्सु मोनोगात्रा, मोनोगात्री ऐसे कुछ करके नाम है इसका। इसका छोटा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका पूरा नाम लिख लो, करेक्शन है 139। उगेत्सु मोनोगात्री करके नाम है इसका पूरा, छोटा नाम लिखा हुआ है, पहला वर्ड डाल दिया, दूसरा वर्ड गायब हो गया। पॉपुलर फिल्म है इसकी। मिज़ोगुची का जो फिल्म है बहुत सिंपल फिल्म मेकर है, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है इसने, ब्लैक एंड व्हाइट। एक ऐसी फिल्म है जो SC ST का सब्जेक्ट जो होता है, शूद्र लोगों का, अछूत लोगों का, वो इसने हैंडल किया है। कौन सी फिल्म है वो भी पता करना, हो सकता है यही ना हो कहीं गलती से। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। Probably the best work of the greatest Japanese animator Miyake. This 1997 period drama is set in the lush forest during the late days. Numerous fantastic elements like mythical warriors, beasts, and figure of magic. सब लोगों ने शायद फिल्म का नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 140 फिल्म। 140 131 है। इसका शायद मैंने पोस्टर कहीं लगा रखा है, इसका कुछ और चक्कर में भी पोस्टर मैंने शायद ढूंढ के निकाला हुआ, मुझे याद है पोस्टर ढूंढ रहा था मैं। 41 रेज द लैंटर्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्म है, यांग जिमो की फिल्म है। ये वो आदमी है जिसने चाइना का सबसे बड़ा कमर्शियली सक्सेसफुल डायरेक्टर, वहां का सुभाष घई है। सुभाष घई नहीं है, मतलब कंपैरिजन है, सुभाष घई वाहियात फिल्में बनाता है, इसकी फिल्में कड़क फिल्म, एकदम सेंसिबल तरीके से फिल्म बनाता है। इसकी फिल्मों से संजय लीला भंसाली इंस्पायर्ड है। घोड़े वोड़े झंडा वंडा जो दिखाई देता है उसके अंदर बैकलाइट, वो इसकी फिल्मों से उठाया हुआ है। हीरो से उसने अपना पूरा का पूरा फिल्म में जो है बाजीराव मस्तानी के जो झंडे वंडे घोड़े वोड़े वो पूरे के पूरे सीक्वेंसेस जो है इसकी फिल्मों से उठाए हुए। तो यांग जिमो की बहुत सारी फिल्में हैं। हीरो है, हाउस ऑफ फ्लाइंग डैगर है, होम करके फिल्म है, होम स्वीट होम ऐसा कुछ करके फिल्म है। ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर फिल्म है वो। जब मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि ब्लैक एंड व्हाइट क्यों बनाते हैं फिल्म, वो भी रेफरेंस आ सकता है। यांग जिमो की फिल्म को उठा के आप जो है रेफरेंस डाल सकते हैं उसमें कि कुछ पार्ट ब्लैक एंड व्हाइट है और उसमें कलर है, बट उसमें कुछ चक्कर है। ब्लैक एंड व्हाइट जो है उल्टे तरीके से काम किया। जनरली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के अंदर नॉस्टैल्जिया के लिए होता है, पीरियड फिल्म के लिए दिखाना होता है कि जब मैं 1934 में पैदा हुआ तो मैं कैसा दिखता था। इस फिल्म में कुछ उल्टा चक्कर है, क्योंकि फिल्म देखी नहीं है तुमने तो इसलिए तुम्हें नहीं पता लगेगा। सिनॉप्सिस पढ़ो तो तुम्हें आइडिया लगेगा। दिस कुड बी वन ऑफ द ब्रिलियंट एग्जांपल। सिनेमेटोग्राफी के लोग हाथ उठाओ, पढ़ो भी। 1 2 3 और कितने लोग हैं? सिनेमेटोग्राफी 4 लोग। इसकी फिल्म पता करो। यांग जिमो की एक फिल्म है रिटर्न होम, ऐसे कुछ करके होम वर्ड है उसके अंदर। लव स्टोरी है, एक टीचर है स्कूल के अंदर, वो अपने फादर की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वापस अपने गांव में आता है। सिंपल सी एक लव स्टोरी है। प्रेम चोपड़ा नाम का एक एक्टर इस फिल्म को देख के बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था। फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई गई थी। प्रेम चोपड़ा जैसे लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक खतरनाक फिल्म है ये, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का खेल है। लिख लो, अगर लिख दोगे यांग जिमो की हीरो होम रिटर्न होम, मिल जाएगा एग्जाम में। इसमें भी देखिए तुम क्या लिख रहे हो उससे पता लग जाएगा जब उसने फिल्म देखी कि नहीं देखी। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। तुम लिख क्या रहे हो उससे उस आदमी को ये समझ आया। मैंने देखी फिल्म, मान लो एक नहीं, तुम क्या लिख रहे हो मैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा। तुमको आता पता है जब हवाबाजी कर रहे हो। हवाबाजी नहीं कर सकते। अगर वो फिल्म देखी है और ब्लैक एंड व्हाइट का रेफरेंस में अब तुम कुछ लिख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान की कुछ झलक है छोटी मोटी। ठीक है, हाँ जी। आइए नेक्स्ट, तो पूछ रहा है कुछ? हाँ जी। 1988 Spanish black comedy with Pedro Almodovar, as the title indicate, it is about the melodrama, hysteria and ladies on the edge. इसकी 3-4 फिल्में हैं जिसमें लेडीज है
उसने ऑन द एज लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये समझ आ जाएगा। एज का मतलब नर्वस ब्रेकडाउन, ऑन द एज। तो थोड़ा सा जो तुक्का उक्का लगाना चाहो तो ऐसे आंसर में कभी कभी तुक्का लग जाता है, लगता नहीं है वैसे, बट लगा सकते हो कभी कभी। अगर क्वेश्चन के अंदर हिंट है, कंफर्म करना था मुझे, जब तो देता नहीं है हिंट वहां पर, बट फिर भी हो सकता है कोई गलती से दे दे तुम्हारे ऊपर रैम करके। हाँ जी, 1943 वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, फ्रांसोis ट्रूफो का 400 ब्लोज, मोस्ट पॉपुलर फिल्म ऑफ ट्रूफो, ड्यूलेजिम एंड 400 ब्लोज। बात खत्म। इसके अंदर जो एक्टर है उसका नाम भी पता होना चाहिए तुम लोगों को। मैंने कहीं क्वेश्चन बनाया हुआ है कुछ एक्टर लोगों के ऊपर, जब क्वेश्चन है तो मैंने उस क्वेश्चन को भी उसमें फ्रेम किया हुआ है। This classic 1989 Polish drama of Krzysztof Kieślowski consists of 10 one-hour films. Each one represents one of the 10 commandments, hence the title Decalogue. अब देखो थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगाएगा, 10 फिल्मों का नाम लिखा हुआ है, 10 one-hour film, तो मतलब Decalogue, 10 का मतलब डेका, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ये तुक्के से भी ये फिल्म बन सकती है, और वहां पर कुछ इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं पूछेगा, इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं पूछेगा। इसमें इसकी फिल्म है किस्लोस्की की, एक उसके ऊपर, एक लव के ऊपर है, एक किलिंग के ऊपर, शॉर्ट फिल्म अबाउट लव। उसका कॉपी बनाया इंडिया में इसी नाम से, शॉर्ट फिल्म अबाउट लव कैसे करके है। इसमें मनीषा कोइराला टाइप कोई एक्ट्रेस थी, और बड़ा उठपटांग का पोस्टर है उसका। तो इसमें जो है किसी भी एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग का है, उसमें पूरा 5 मिनट का एक सीक्वेंस है जिसमें कोई डायलॉग नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है which film of the Kieślowski is about, is there in which there is a sequence of 4 minutes or 5 minutes in which there is no dialogue, ये भी पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट फिल्म और किलिंग है वो फिल्म, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है वो, बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी सी फिल्म है, डिप्रेसिंग फिल्म है, बट पूछा जा सकता है। शॉर्ट फिल्म और किलिंग, और वो पॉपुलर भी है, किलिंग एंड लव, वन ऑफ पॉपुलर। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। क्रिस्टोफ किस्लोव्स्की हिंदुस्तान 3-4 बार आ चुका है, बट वो जो आदमी जिसका सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है वो है जानूसी, स्पेनिश पॉलिश डायरेक्टर, मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया अमंग द फिल्म फेस्टिवल सर्किट इज क्रिस्टोफ जानूसी, नॉट क्रिस्टोफ किस्लोव्स्की। गलती से किस्लोव्स्की मत लगा देना। This Iranian film from Abbas Kiarostami has an intriguing plot about a man who drives through a city suburb looking for someone who can carry out the task to bury him after he commits suicide. 9145, बड़ा अजीब सा नाम है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है टेस्ट ऑफ चेरी को लेके, कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 2-3 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एक क्वेश्चन टेस्ट ऑफ चेरी से मिलता जुलता कुछ है, क्या है वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, आप लोग भी देखिए ध्यान से। हाँ जी, फिर फ्रिट्ज लैंग दोबारा आ गया वापस। 1927 film by Fritz Lang is considered the first sci-fi epic set in the urban explore the relationship worker and owner of the capitalism। 1946 मेट्रोपोलिस, इसका सेट जो है बहुत डिस्कस हुआ है। मेट्रोपोलिस ये फिल्म है फ्रिट्ज लैंग की, तो एम है और एक मेट्रोपोलिस है, उसका सेट जो है बहुत कई बार जो है बहुत बड़ा सेट बना उस जमाने के अंदर, तो उसकी वजह से भी ये फिल्म जो है, इसका पोस्टर देखना अगर तुम्हें मिले, थोड़ा इमेजेस देखना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, याद रहेगी वो फिल्म। ऑब्सक्योर ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बुनुअल का फिल्म है, 1976 फ्रेंच स्पेनिश, डायरेक्टेड बाय बुनुअल, बेस्ड ऑन द 88 नॉवल वुमेन एंड द पपेट रिटन बाय, मैंने पता नहीं क्यों बना दिया ये, कहां से मुझे पता लगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बुनुअल की कंट्रोवर्शियल फिल्म है, फॉरेन लैंग्वेज के लिए नॉमिनेटेड थी, बिना रैंकिंग चेक कर लेना जरा, नॉमिनेटेड थी, गारंटीड है। 147 लुई बुनुअल 147, ये अजीब सा नाम है, ये मैंने कभी जिंदगी में सुना नहीं, बट फिर पता नहीं मुझे कहां से पता लगा, तो मैंने लिख के रख दिया। कोई अगर ये सोच के बैठ जाए कि मुझे दुश्मनी है तुम सब लोगों से, तो ऐसा कोई क्वेश्चन तुम ढूंढ के ले आएगा। ऐसे बहुत सारे नाम है, तो मैंने 500 नाम दिए हुए हैं, सब इसी टाइप के नाम है। ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है अपने आप में। अब इंपॉर्टेंट बुक क्या है दुनिया में कोई नहीं पता, दुनिया में कोई नहीं पता क्या होगा। मान लीजिए एक बुक है जो किसी बड़े आदमी ने उसको कोट किया है, उस बुक को,
इंडियन लिटरेचर की एक किताब को कोट किया है, नदी के द्वीप। मैंने लिटरेचर वाले सेक्शन में डाला हुआ है। वो अज्ञे नाम का एक आदमी रहा है हिंदुस्तान के अंदर, राइटर, बड़ा राइटर। अज्ञे की सबसे पॉपुलर बुक, पॉपुलर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बुक माना है उसका। इंडियन लिटरेचर की कोई किताब उसने इंक्लूड नहीं की अपने उसमें लेक्चर के अंदर, केवल एक किताब को उसने वेटेज दी। ऐसा भी कोई पागल आदमी को ऐसी किताब का नाम पता हो, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और किताब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नदी के द्वीप मैंने मेंशन की हुई है वहां पर, अज्ञे की और कोई किताब मेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी बोल रहा है कि पढ़ो, इंपॉर्टेंट किताब है तो पढ़ो। हाँ जी। Which film of Akira Kurosawa won the Palme d'Or in the Cannes 1980 Film Festival and also nominated for the Academy Award for Best Foreign Language Film 1948 का कागेमुशा। ये पूछा जा सकता है कि कागेमुशा की स्टोरी किस उसके ऊपर बेस्ड है। शेक्सपियर का एक नॉवल है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कौन सा है, पर तुम चेक कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं भी लिख लेता हूँ, मैं भी चेक करूँ कागेमुशा किस में बेस्ड है। वॉर फिल्म है। हाँ जी, आगे बढ़ जाइए। टोक्यो स्टोरी वाज डायरेक्टेड बाय, सबको पता है, ओजू। मैंने पहले भी क्वेश्चन बनाया हुआ है इसके ऊपर। 150 लास्ट को कंटेम्प्ट वाज डायरेक्टेड बाय, लास्ट में मैंने दोबारा से क्वेश्चन ले लिया, कंटेम्प्ट वाज डायरेक्टेड गुदा लिखा हुआ। ये आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सेव करके रख दिए हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में वो भी कहा। बट इसका मतलब ये नहीं यही है फुल स्टॉप लग गया बात, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये तो मैंने मोटा मोटा हिसाब किताब आपको बताया है। थोड़ा सा और कुछ देखते हैं, हमारे पास 10-15 मिनट है। आइए, जब आप यूरोपियन सिनेमा का आंसर वाला शीट देखेंगे तो आपको बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे, पिक पॉकेट, अंबर्टो डी, एगुरी द रेथ ऑफ गॉड, थिंग्स ऑफ डिजायर, एमिली रान, ये सारे नाम जो अगर वैसे कोई पढ़ना चालू कर देगा, जो सिनेमा वाला आदमी होगा वो कहेगा इनसे कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा वो मुझे पता नहीं, बट थोड़ा सुना होगा, कुछ आइडिया लगा पाओगे। मैंने हालांकि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके आपको दे दिया है, बट फिर भी जो है, अब मैंने क्या करा, ये फ्रेंच फिल्में कुछ ढूंढी इधर उधर से, मैंने कुछ 2-3 जगह से कि कौन कौन सी पॉपुलर फिल्म है, पॉपुलर मतलब इंपॉर्टेंट 100 फिल्म इन द फ्रेंच सिनेमा। तो इसमें कुछ एक फिल्में ऐसी हैं जो अननोन लोग, उन लोगों ने एक ही फिल्म बनाई और उसके बाद कोई फिल्म नहीं बनाई है, 2 फिल्म बनाई, ज्यादा नहीं बनाई। फिल्म है चेकोस्लोवाकिया का फिल्म है, यूगोस्लाविया नहीं, चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया का फिल्म है रोंडो करके, RONDO। केवल उस आदमी की वही फिल्म है जो एफटीआई के अंदर डिस्कशन क्लास होती है, वहां पे एफटीआई के अंदर एक फिल्म दिखाई जाती है, जो इंपॉर्टेंट फिल्म होती है, उसका सैटरडे को डिस्कशन होता है। तो मॉर्निंग में रोंडो फिल्म हर साल दिखाई जाती है, और म्यूजिक के ऊपर है, वो म्यूजिक का पैटर्न होता है रोंडो। उसके चेस खेलते हैं वो लोग हस्बैंड वाइफ, उसके घर आता है वो दोस्त के यहाँ, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग। बट ये जो रोंडो ही नाम क्यों है उसका, ये बहुत कॉम्प्लेक्स जो है क्वेश्चन है, हर किसी आदमी को नहीं समझ आता, फिर सेकंड ईयर में दोबारा समझ आता है। उस जमाने में ये सब किताबें होती नहीं थी, गूगल कोई साइट एंड साउंड में जाके पढ़ लिया, कहीं और पढ़ लिया उसके बारे में, तो मुझे पता लग गया तो अच्छी बात है, वरना पूछ। अभी क्या है, आप IMDb एक जगह है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इंटरनेट मूवी डेटा बैंक, उसमें जाके किसी भी फिल्म को क्लिक करो, वहां उसके रिव्यू दिखाई देंगे, उसमें आपको उसमें यूजर्स कमेंट दिखाई देंगी, उनको कट पेस्ट करके अपना वर्ड फाइल में ले आओ, फिर वहां से कुछ पॉइंट्स जो है निकाल सकते। पर्टिकुलरली एक्टिंग के लोग, एक्टिंग के कौन लोग हैं यहाँ पर, एक्टिंग के लोग एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस वाला आइडिया जो है, पूछते हैं ना कि किसी की परफॉर्मेंस एनालाइज करो, आप कैसे करोगे उसमें। तो मैंने पहले भी शायद पता नहीं बताया कि नहीं बताया, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं ये बात। कोई भी एक फिल्म जो तुम्हें लग रहा है, अभी मैं भी चूज करूंगा देख के थोड़ा सा लिस्ट में से कि कौन सी फिल्म है जिसमें किसकी परफॉर्मेंस का क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए। तो उसमें क्या है, क्या लिखना है, उसका तरीका ये होता है कि आप जाके गूगल में जाइए, उसको क्लिक करिए, IMDb में नहीं, मत क्लिक करो, जनरल डाल दो गूगल में, कुछ 15-20 वेबसाइट आ जाएंगी वहां पर, जहाँ पे उस फिल्म से रिलेटेड कुछ लोगों ने लिखा हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स जो है, अगर वो लिखते हैं तो तरीके से लंबा लंबा जो है, उसमें से कुछ परफॉर्मेंस को, एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में वो 2-4 सेंटेंस में लिखे हुए हैं, उठा के वो नोट कर लो। दूसरी रिव्यू में जाओ, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में 2-4 लिखा हुआ है, कट करके जोड़ लो। तीसरी के बाद, अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए मैं करा करूंगा थोड़ा सा,
इससे क्या आसान हो जाएगा आने वाले लोगों के लिए। हर साल नई फिल्में आती हैं, उसी टाइम में कुछ रिव्यूज आते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो वहां से उठा के सारे रिव्यू कट करके एक वर्ड फाइल में ले लो। हर एक रिव्यू में से जो काम की बात है परफॉर्मेंस को लेके, जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इंग्लिश का खेल होता है, लैंग्वेज का खेल, वर्ड्स का खेल होता है, किसने क्या शब्द इस्तेमाल किया है उसको डिफाइन करने के लिए वो आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप 8-10 लोगों को लेके पकड़ के कौन कौन सी फिल्में हैं प्रैक्टिस करके वर्ड फाइल में आके वहां पे एक छोटा सा अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस का अपना पैराग्राफ बना सकते हो। बात समझ आ गई? कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अभी श्रावस्ती आएगी तो मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है उसके साथ। 5-10 मिनट पहले मैं जल्दी शूट आ जाता हूँ। बात समझ आई मैं क्या बता रहा हूँ? परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करनी है, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसेगा वो सब बातें छोटी छोटी जो आपको किसी क्रिटिक्स ने कहीं ना कहीं अपने रिव्यू में लिखी होगी। उठा के 10-15 रिव्यू वर्ड फाइल में डाल दो, वहां से उसके जो जहां उसने वो परफॉर्मेंस की बात की है उसके वो मार्क कर लो, तो आपके पास 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस या 7 सेंटेंस उसके रिव्यू उसकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मिल जाएंगे किसी और की लैंग्वेज में, जो कभी एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा तुमने कहां से कट पेस्ट करके चेक किया। फॉर्मूला बता रहा हूं मैं तुम्हें, कोई नहीं बताएगा। 20,000 रुपए दिए इसलिए बता, यहाँ 10,000 वाले में से काट देंगे, मुझे पता लगना चाहिए ना ये बात। होते रहते हैं वो लोग, सर बहुत एडिट कर देते हो आप, घर में बैठे बैठे समझ आ रहा है सब कुछ तुम्हें, कैसे होगा? ये इसका नाम है ले मैफ्री, गोदाम की जो फिल्म है, मैंने पोस्टर भी लगा रखा है यहाँ पर, ये किसी चक्कर में ये इंपॉर्टेंट फिल्म में भी लगाया हुआ है। तो ये बड़ा कंटेम्प्ट के नाम से जो फिल्म है, ये इंपॉर्टेंट फिल्मों के नाम मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, इसको थोड़ा तस्वीर लुक देख लेना आप लोग, फिर मैं कल आपको बताऊंगा कौन कौन सी फिल्में जो है खतरनाक फिल्में हैं इसमें से, तो सब लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना हाँ पूछो। साइलेंस क्वेश्चन। 10 विजुअल्स नरेट, क्वेश्चन क्या है मुझे वो पढ़ के सुना। 10 विजुअल बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करिए 10 नहीं, स्टोरी बोर्डिंग का नहीं होता। मान लो मुझे अब आप क्राफ्ट के डायरेक्शन क्लासरूम में बैठे हो, कैसे डिस्क्राइब करोगे इस क्लासरूम को? बड़ा सिंपल, कैसे? say for example a classroom of 20 feet by 30 feet having a ceiling of 12 feet, like in my room it is not 12 feet, it is less, so 12 feet is long, having framed material in which glass wool is used so that the sound could be absorbed, and on that various kind of frames are being put up, which are the student works or which are the work of a photograph taken from the workshop, which are done in the past in the craft film school. It also has a flooring which is of Finza. This kind of flooring is called dismantleable flooring. You can dismantle it and take it anywhere and again reassemble it. So it has a flooring which is a dismantleable and you can assemble it anywhere. So this is, it has a glass panel on the door where some posters of important films of the European films are being put up. So आपको description आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हारे घर में क्या ऐसा खास चीज है तुम वहां से बता रहे हो, तुम कैसे जाते हो, मेट्रो से जाते हो, क्या जाते हो? 10 चीजें इंपॉर्टेंट आपको विजुअल, तो अब लिखोगे तो समझ आएगा। मैं बता सकता हूँ ऊटपटांग लिखा है या रक्सी लिखा है, हर आदमी का अलग अलग होगा, तो उसमें डिस्क्राइब करिए आप किस तरह बनाए कि डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया। अब इसकी बाहर की कैफे का डिस्क्राइब करना है, मान लीजिए हाउ आवर कैफे इज डिफरेंट फ्रॉम देयर कैफे। आईआईएम की जो कैफे है बिल्डिंग की, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश देयर कैफे? जाके गलती से जा नहीं सकते हो वहां पे तुम लोग, पर बड़ी वाहियात किस्म की कैफे बनी है, मक्खी बिनकती रहती है वहां पे। ग्लास के नीचे ये जो 2,000 रुपए का पैनल रखा हुआ है, क्योंकि वो लोग पैसे खर्च करने में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए 10 रुपए भी नहीं करते। पीछे जाओगे कभी टॉयलेट में तो राइट साइड में पत्थर लगा हुआ है, वो 2 जगह से टूटा हुआ नीले रंग का। तो समथिंग विच इज आर्टिस्टिक, अगर इसमें ये नीचे की चीज ना लगाई जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टेबल ऐसी की ऐसी रहेगी। बट इस टेबल में क्या फर्क है और लोगों की टेबलों से? हमने इसमें 2,000 रुपए का गोल 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 वाला एक पैनल लगाया हुआ है, जिससे एक आर्टिस्टिक फीलिंग आए। तो आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझे कि 10 विजुअल्स घर से निकलते ही क्या हुआ, कोई खास बात तुम्हें दिखाई दी हो, रंग बिरंगे फूल पौधे पत्तियां कुछ 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 वसंत विहार से एक दिन में निकला, एक दिन पेड़ टूटा हुआ था,
ड्रामा पैदा कर सकते हो। ये लेकिन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ इसे कोई डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअली डिस्क्राइब करना है। आई वोक अप 10 विजुअल्स, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर पता लगेगा। मैंने पढ़ा नहीं है बट ऐसा क्वेश्चन है 10 विजुअल्स वाला। 10 विजुअल डिस्क्राइब करो तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या विजुअल है, वो विजुअल दिखाई दे रहा है। चैपलिन की फिल्म दिखाई दे रही है, मान लो 10 मिनट की, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? थिंक लाइक दिस, थिंक फ्रॉम चैपलिन्स पॉइंट ऑफ व्यू। चैपलिन का फिल्म देख के तुम क्या बताओगे घर पे जाके कि अरे मैं आज चैपलिन की फिल्म देख के आया, क्या देखा उसमें बताओ? 10 पहले कैसे फिल्म चालू होता, फिल्म बिगिन विद देन चैपलिन डू दिस देन दे डू दिस, वहां पे जो डिस्क्रिप्शन है वही बता दो अपना 10 करेक्ट। जैसे मैंने बाहर का कहते कैफे डिस्क्राइब करना है तो यू कुड डिस्क्राइब अबाउट द टेबल, यू कुड डिस्क्राइब अबाउट द चेयर्स, यू कुड डिस्क्राइब अबाउट द कवर्ड पार्ट, समझे कि नहीं? तो वो आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, समझे मेरी बात? और कुछ बॉलीवुड एंड बॉलीवुड डिफरेंस है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। देखो तुम भी पता करो, हम भी पता करेंगे। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड टॉलीवुड, नॉलीवुड, बहुत सारे वुड है हिंदुस्तान में। What is the difference in Bollywood and Hollywood? एक सेंटेंस में अगर आंसर देना हो तो कैसे दोगे? In Hollywood, they prepare for 6 months and shoot for 6 days. In India, they prepare for 6 days and keep shooting for 6 months. This is the difference. Akira Kurosawa से किसी ने पूछा, what is the difference between Kurosawa and Ozu? Akira Kurosawa का एक contemporary आदमी जो senior है उससे Ozu, Yoshiro Ozu, टोक्यो स्टोरी वाला आदमी। Kurosawa का क्या आंसर था? Kurosawa का आंसर था, Ozu has to go to the location and Kurosawa bring the location to the studio. ऐसा हमारे पास लगाओ सर। Ozu बेचारा धक्के खाता पीता वहां जाके चावड़ी बाजार में अगर शूट करना है तो करवाया। हम चावड़ी बाजार को स्टूडियो स्टाइल में बोला उसने, बहुत पैसा उसकी। This is the difference. Hollywood and Bollywood में बहुत डिफरेंस है। एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, आप कुछ और भी ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। This is a good question actually. What is the difference between Hollywood and Bollywood film making? और कुछ, अभी भी 3 मिनट है हमारे पास। तो टाइम पैसे वसूल कर रहे हो तुम लोग। सर मेरा क्वेश्चन जैसे मैंने बोला विजुअल दिखाना है। So, okay, guys, we are done for today. Whoever is here, fine. If you want to mark your attendance, you can do that. Otherwise, it's all right. We are wrapping up today. At 9 o'clock, there would be film analysis of a film called Akira Kurosawa's Dream. So those who are interested, they can come. Acting and direction, it has already been asked. The same question can also, similar question can also be asked for the cinematography, editing, sound, etc., etc. So if you wish, you can come. If you don't wish, it's not required. Thank you. Have a nice day. 9 p.m. today.